हेलो ऑल, वेलकम टू ChemThinker। ChemThinker में आज का टॉपिक है बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिसेंटली क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि जो IIT जॉइंट या नीट का जो क्वेश्चंस आ रहा है पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, दैट इज बेस्ड कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। Now, obviously, I started with the very general organic chemistry like inductive effect, resonance, acidity, basicity. But then I thought that to understand the mechanism of a reaction completely, we should know about this part. ये वाला पार्ट हम लोग omit कर जाते हैं, हम लोग जनरली ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट में हम लोग आज कवर करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बॉन्डिंग है उसका एमओ थ्योरीज और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज एंड हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेल्प्स अस टू टेल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड और अ पर्टिकुलर बॉन्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में भी, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम में कैसे करके ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं। उसके टाइम में हम लोग वी नीड टू नो अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड बॉन्डिंग इन conjugate systems. So let's do it. तो पहले जो चीज है, why it is an important topic to know. So already I have told you that the best way to understanding the organic chemistry or the right now in perspective of the competitive examination like joint and NEET, we have to understand the mechanism of the organic chemistry. Especially if I tell about a recent examples, NEET में एक क्वेश्चन आया है इस बार री नीट में, जो हम लोगों का ब्रोमीन एडिशंस के ऊपर एल्किन के ऊपर आया है एंड दे हैव गिवन द न्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। अभी people are thinking that we have to make the product in Fischer form and then we have to transfer in Newman form. ऐसा नहीं है। The original reaction mechanism, if you go for JEE Merge book or Peter Sykes or Claydon का book, original जो reaction mechanism है वो बना ही हुआ है Showers and Newman projection में। That means if you know the reaction mechanism properly, you can easily answer this question within few seconds. You don't have to convert from Fischer to Newman. तो इसके लिए we need to have a mechanistic approach towards organic chemistry, and as organic reactions or any reactions are breaking of old bonds and making of new bonds, that's why we need to know about the bond. Definitely if we know about some guiding principle, we should be able to answer questions from any mechanistic type of problems. कोई भी mechanistic problems, कोई भी mechanism का problem का सॉल्यूशन जो होता है जनरली हम लोगों का जो बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, उसका एसिडिटी बेसिसिटी, स्पीसीज कोई भी स्पीसीज का न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी, ये सब के बेसिस पे हम लोग आंसर कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वी शुड नो अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द बॉन्ड particularly in normal system and conjugated system, and that's the reason we need to know about this topic. So I would like to request you कि ये वीडियो को पूरा देखिए एंड आफ्टर यू विल सी दिस वीडियो कम्प्लीटली, आई बेट यू कि आपका जो ऑर्गेनिक रिएक्शन का बेसिक्स जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि फ्यूचर में कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म का जब हम लोग केमथिंकर में उसका रीजनिंग लेके आएंगे तो वो चीज बहुत इजी होगा आपको समझने में। एंड एज वी गो थ्रू with all proper reasoning to explain the reaction mechanism, you will not forget it for in future, क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में समझ रहे हैं, वी आर नॉट मेमोराइजिंग इट फॉर दैट टाइम। तो पहले जस्ट टू गो डीप इनटू दिस टॉपिक वी शुड नो दैट व्हाट वी नो टिल नाउ। अगर पकड़ लेते हैं कि वी आर जस्ट लाइक it is this chapter is a first chapter in organic chemistry that we need to learn. Actually, indeed, it should be the first, starting lesson for organic chemistry. Then just assume that we just came from class 10 and we have only the knowledge of class 10 standard knowledge in organic chemistry. Then what we know at that time, we should know the catenation property of the carbon. कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड करके खुद के बीच कोवेलेंट बॉन्ड करके लंबा चेन या रिंग फॉर्म कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेनी कार्बन एटम्स कैन फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद इन देम, in between them, and form long chains. That is called the catenation property, and this is because the carbon atoms are small. उसका बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, दैट्स व्हाई दे कैन मेक लॉन्ग चेन्स, दैट वी नो। एंड ऑल्सो वी नो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है कार्बन का।
एंड कार्बन जो है वो खुद के बीच, मतलब कार्बन का दो एटम के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है. पर्टिकुलरली वी नो कार्बन विथ हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एल्केन. व्हेन कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड हो रहा है तब दैट इज कॉल्ड एल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एल्काइन. नाउ टेट्रावैलेंस जो कार्बन फॉर्म हो रहा है उसका जो वैलेंसी या जो होता है वो कैसे आता है, दैट वी आल्सो नो. जो कार्बन जब बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तब उसका पहले एस और पी ऑर्बिटल के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है. दैट मीन्स कार्बन का जो आउटर ऑर्बिटल है वो 2s एंड 2p है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं. बट एट द सेम टाइम द टू इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ओनली गोइंग फॉर बॉन्डिंग पार्टिसिपेशन ऑफ बॉन्डिंग. तो क्या होता है कि एक एस ऑर्बिटल या और के साथ तीन पी ऑर्बिटल या फिर दो पी ऑर्बिटल या फिर एक पी ऑर्बिटल, डिपेंड करता है, वो मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है. एंड वी नो इन केस ऑफ कार्बन इट कैन बी sp3 जब एक s के साथ तीन पी ऑर्बिटल हाइब्रिड होता है, या फिर sp2 जब एक s के साथ दो पी ऑर्बिटल मिक्स होता है, या फिर sp जब एक s के साथ एक पी ऑर्बिटल मिक्स होता है. तो ये तीनों टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है कार्बन में. तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स. तो आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स we know about the hybridization, considering that we read it in the class 11, the chapter of bonding. तो हम लोग फिर से देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है कार्बन का, थोड़ा रिवाइज करेंगे एंड देन इमीडिएटली वी विल जंप टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ दिस हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स. sp3 हाइब्रिडाइजेशन पहले देखते हैं. sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो रहा है कि एक 2s ऑर्बिटल और तीन 2 ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई 1s 3p sp3 ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है. देन उसका पिक्चर देख लेते हैं कैसे होता है sp3 ऑर्बिटल का. देखिए एक s में एक s होता है कि जो 2s वो स्फेरिकल शेप का होता है और तीन p ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है. उसका ओरिएंटेशन होता है एक px होता है जो x एक्सिस के अलोंग x एक्सिस होता है जिसका ओरिएंटेशन, एक py होता है जो y एक्सिस में अलोंग मतलब डायरेक्शन में होता है, और एक pz ऑर्बिटल होता है. नाउ दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स. सपोज वी हैव 3 कप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स और 3 ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. एक में कोक है, एक में फांटा है, एक में मिरिंडा है, एक में स्प्राइट है. देन वी विल मिक्स ऑल 4 ऑफ देम and then we'll be having a volume of 4 glass, right? जो मिक्सर जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है उसमें उसका वॉल्यूम again we can divide in all the 4 glasses, but this time all the 4 glass will be having same mixer, and उसमें कोक का टेस्ट भी है, फांटा का भी टेस्ट भी है, मिरिंडा का भी टेस्ट है और स्प्राइट का भी टेस्ट. तो सभी चारों का प्रॉपर्टी लेके एक मिक्सर हो रहा है जो चारों ग्लास में सेपरेट हो रहा है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. बट इसमें क्या हो रहा है, एक एस तीन पी, अगर मतलब कंसीडर कर लेते हैं एक ग्लास में मेरा कोक है और तीन ग्लास में मेरा फांटा है या मिरिंडा है, तीन ग्लास में मिरिंडा है, एक ग्लास में कोक है, तो मिला के मेरा 4 ग्लास का मिक्सर हो रहा है, एंड ईच ग्लास विल टेस्ट मोर लाइक अ मिरिंडा देन लाइक अ कोक, राइट? ऐसा ही होगा. तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है, बट ईच सभी ग्लास में सेम टेस्ट का लिक्विड होगा इस टाइम में. तो वही हो रहा है कि ये चारों ऑर्बिटल मिलके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो रहा है वो 4 हो रहा है अगेन, एंड दैट 4 ऑर्बिटल्स विल बी हैविंग सिमिलर कैरेक्टर, एंड दैट इज कॉल्ड sp3 ऑर्बिटल. नाउ ये जो sp3 ऑर्बिटल है, ये sp3 ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट करके रहता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में. क्यों? देखिए दिस इज बिकॉज ऑफ द नंबर. कैसे? अगर 4 ऑर्बिटल रहता है उनमें से एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ दे गो फॉर बॉन्डिंग तब जाके उस ऑर्बिटल का डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन करके रह रहा है. तभी क्या हो रहा है, वो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है या बॉन्ड के पहले जो ऑर्बिटल का खुद का जो एक एक करके इलेक्ट्रॉन रह रहा है उसके बीच रिपल्शन होता है. एंड टू मिनिमाइज द रिपल्शन एंड टू मिनिमाइज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी लो हो जाएगा. सो टू मिनिमाइज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स है वो ऑर्बिटल मतलब जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है या जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो बॉन्डिंग का जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक दूसरे के साथ मैक्सिमम 109 डिग्री 28 मिनट करके रह सकता है, तब जाके उसका रिपल्शन मिनिमम हो जाता है. अगर वो चेंज थोड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि 2 बॉन्ड के बीच डिस्टेंस घट जाता है
एंड रिपल्शन बढ़ जाता है। तो सपोज ये अगर 109 डिग्री 20 मिनट से घट जाएगा तो क्या होगा, मे बी दो बॉन्ड के बीच रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा, बट फिर से दो बॉन्ड या दो ऑर्बिटल के बीच रिपल्शन घट जाएगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम डिस्टेबलाइज कर जाएगा। तो वी वांट सेम रिपल्शन फॉर द फोर ऑर्बिटल्स in between the four orbitals, and that should be the lowest in terms of magnitude. तो इसके लिए we need to have the tetrahedral configuration और tetrahedral structure, जहां पर एक 109 डिग्री 28 मिनट में वो जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड एक दूसरे से ऐसा एंगल करके रहते हैं। नाउ ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, देन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल वो बॉन्ड करेगा किसके साथ, नो 1s हाइड्रोजन के साथ या कोई भी ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम के साथ बॉन्ड करेगा, एंड दैट इज इन केस ऑफ हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल। बट ये जो बॉन्ड करता है दैट डिपेंड्स अपॉन द ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होता है वो जितना अच्छा होता है तो बॉन्ड उतना अच्छा स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी द रिलेटिव ओवरलैपिंग ऑर्बिटल पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ये कोई यूनिट नहीं है, दैट इज अ क्वांटम केमिकल कैलकुलेशंस एंड दैट एक्चुअली शोज द रिलेटिव ओवरलैपिंग पावर ऑफ ईच ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एस का जो ओवरलैपिंग पावर है वो पी से कम है और एस पी का जो ओवरलैपिंग पावर है वो पी से ज्यादा है। मतलब एस का सबसे कम है, पी से पी का उससे ज्यादा है, एस पी का उससे ज्यादा है, sp2 का sp से ज्यादा ओवरलैपिंग पावर है और sp3 का sp2 से ज्यादा है ओवरलैपिंग पावर। दैट मींस इट शोज दैट व्हाई हाइब्रिडाइजेशन इज रिक्वायर्ड। कभी कभी हम लोगों को क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आता है कि विदाउट हाइब्रिडाइजेशन भी तो बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे कार्बन का p ऑर्बिटल में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बॉन्ड विथ अदर एटम्स, p ऑर्बिटल में रह के ही कर सकता है। व्हाई वी नीड टू go for hybridization, why you need to make hybridized orbital, and this is one of the reason because after hybridization orbital का overlapping power बढ़ जाता है। अगर overlapping power बढ़ जाता है if the overlapping power increase then क्या होता है, bonding, the strength of the bond will increase. So this is one of the reason that hybridization takes place. But again we'll know about the molecular orbital theory, and molecular orbital theory the basics we came to know from the chapter bonding। वहां पर हम लोग नाइट्रोजन का molecular orbital theory देखे, ऑक्सीजन का देखे, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हेटेरोएटम का देखे। तो we need to see right now this kind of molecules with sp3 hybridization carbon in terms of in light of molecular orbital theory। कैसे करके देखिए, तो पहले हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैसे करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। कैसे किया जाता है, यहाँ पर वाई एक्स में एनर्जी लिया जाता है एंड एक्स में जनरली कुछ नहीं रहता है। अगर इफ यू वांट टू नो व्हाट शुड बी देयर इन एक्स एक्सिस, जनरली क्या होता है जब ऐसे एनर्जी डायग्राम ड्रॉ किया जाता है तब जाके एक्स एक्सिस में मेरा कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या जो डिस्टेंस ऑफ एटम ये ड्रॉ किया जाता है ऑफ एटम्स। मतलब जो एटम ए एंड बी पार्टिसिपेट कर रहा है उसका न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, मोस्टली डिस्टेंस ऑफ एटम्स का न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो ड्रॉ किया जाता है यहाँ पर। बट molecular orbital diagram में we are not much bothered about this distance, we are mostly bothered about the energy of the orbital, and that's the reason we will not keep it in our mind for the time being, we will just focus on the energy। अभी देखिए एनर्जी देख के क्या पता चलता है यहाँ पर हम लोगों को, we come to know the energy of the atomic orbital those who are participating in the bonding। यहाँ पर क्या हो रहा है, एटम ए और एटम बी का एनर्जी सेम लेवल पे है, considering that both atom A and B have same size of A and size of B same है। But at the same time if both have same electronegativity also we can draw the same atomic orbital। mostly क्या है इन summary के
दोनों एटम का अगर साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, देन द एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सेम। तो यहां पर हम लोग पकड़ लेते हैं कि ए और बी सेम एटम है, कार्बन है, देन इट विल बी इन सेम एनर्जी। क्या होता है अगर साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाता है? देखिए, इफ अगर पकड़ लेते हैं मेरा साइज ऑफ बी, ये क्या पर लिखते हैं, अगर मेरा साइज ऑफ बी लेस देन साइज ऑफ ए होता है, दैट मीन्स मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए होता है, तब जाके ये जो बी का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये नीचे चला आएगा। देखिए, तब जाके मेरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ होगा, इसका वाई एक्सिस में एनर्जी आएगा, ए का मेरा जहां पर ए ऑर्बिटल का ए का एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, बी का एटॉमिक ऑर्बिटल वहां पर नीचे रहेगा उससे। दिस इज वाई, दिस इज बिकॉज नाउ द आउटर ऑर्बिटल ऑफ द बी, जहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक आउटर ऑर्बिटल ऑफ द बी इज मोर स्टेबलाइज्ड। और ये आप लोग जानते हैं कि अगर साइज छोटा होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, जो आउटर ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के नजदीक चला आता है, और जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना नजदीक होता है उसका एनर्जी उतना लो होता है। जैसे एस ऑर्बिटल का एनर्जी लोअर देन पी ऑर्बिटल। दैट्स द रीजन दैट व्हेन वील ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, then we have to consider the atoms. If both atoms are same, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बाद बीच में बॉन्ड हो रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, तब जाके उसका एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है दैट विल बी इन द सेम लेवल। बट इफ बोथ आर नॉट सेम, देन there will be a difference, and the atomic orbital or outer atomic orbital of that atom which where the size is low of the atom which has lower size, that will go below, that means उसका एनर्जी जो है वो नीचे चला जाएगा, वो मोर स्टेबल होगा। तो ये मेनली द रूल्स हाउ वी ड्रॉ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन वी ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ करने के बाद वी नीड टू ओवरलैप इट एंड वी नीड टू मेक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से अगेन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। जस्ट कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर अगेन, लाइक हाइब्रिडेशन में जैसे पकड़ते हैं, दो ग्लास लिक्विड से अगेन दो ग्लास लिक्विड फॉर्म हो रहा है, बट हैविंग नाउ द प्रॉपर्टी चेंज। क्या हो रहा है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब बॉन्ड करेगा अभी, उसमें जाके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी जो है वो नीचे चला आएगा, पोजीशन बीच में रहेगा। अगेन इफ यू कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, तो बॉन्डिंग दोनों न्यूक्लियस का बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस का बीच में रहता है, जब जाके मेरा यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल सेम रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहता है। तो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस बराबर हम लोग रखेंगे, बीच में रखेंगे, बट वाई एक्सिस बराबर बराबर मेरा एक ऑर्बिटल नीचे चला जाएगा, एक का एनर्जी नीचे चला जाएगा और एक का एनर्जी ऊपर चला जाएगा, एंड दैट actually came from quantum mechanical calculations. So we don't have to understand about the calculations or do not have to see the calculations, but we have to see the outcomes. We have to know about the outcomes of the calculations. Outcome क्या बोल रहा है कि दोनों सेम लेवल का एटॉमिक एनर्जी जब मिक्स करेगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसका दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी उस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल से नीचे रहेगा, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी इस एनर्जी लेवल के ऊपर रहेगा। तो वो जो ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल से ऊपर रहेगा उसको हम एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल का, वो कभी इस ऑर्बिटल में जाना नहीं चाहेगा, इस ऑर्बिटल में नहीं जाएगा कभी। ग्राउंड स्टेट में, स्टेबल रहने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला आएगा, एंड दैट्स द रीजन यू सी राइट नाउ कैसे करके बॉन्डिंग होने के बाद ओवरऑल सिस्टम का एनर्जी घट रहा है, सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है। जनरल सिस्टम अभी क्या हो रहा है, जब एटम लेवल में था तो एनर्जी का लेवल ये था, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस लेवल में था। जब बॉन्ड हो रहा है एनर्जी का लेवल नीचे चला रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन का, तब जाके सिस्टम मेरा स्टेबल हो रहा है एंड बॉन्ड इज फॉर्मिंग। सो दिस इज हाउ वी हैव टू ड्रॉ द molecular orbital diagram, and we have to explain or analyze the molecular orbital diagram. So now let's see the molecular orbital diagram of methane, जहां पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज करके रहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले
तो हम लोग एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं, एनर्जी एक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं, जहां पर नीचे से ऊपर एनर्जी मेरा इंक्रीज कर रहा है. देन वी हैव 2s and 3 2p orbital, 1 2s orbital. So what is happening right now? First we'll see the hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहा है, उस एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या हो रहा है, एनर्जी जो है, एनर्जी मिक्स हो रहा है. एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी मिक्स हो रहा है. मिक्स होने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है. मिक्स होने के बाद उसका जो एनर्जी है, उसका एनर्जी एक्चुअली दोनों के बीच में आ रहा है. तो एक्चुअली देखिए, दैट इज द रीजन, अनदर रीजन दैट हाइब्रिडेशन इज टेकिंग प्लेस. व्हाई हाइब्रिडेशन इज टेकिंग प्लेस बिफोर बॉन्डिंग? एटॉमिक ऑर्बिटल का जो हाइब्रिडेशन क्यों हो रहा है, एक तो मैं दिखाया हूं कि बिकॉज ओवरलैप, जो ओवरलैप हो रहा है उसका ओवरलैप पावर इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल का आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन. और एक हो रहा है, अगर नॉर्मली बॉन्डिंग करने के लिए जाता था कोई कार्बन एटम, तो उसका पी ऑर्बिटल का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वही देके बॉन्ड करने के लिए जाता था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन देखो ये हाई एनर्जी में है. जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तब जाकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल में चला है वो पी से मेरा नीचे चला है. तो बिफोर बॉन्डिंग इट इज स्टेबिलाइजिंग एंड आफ्टर बॉन्डिंग इट इज फर्दर स्टेबिलाइजिंग हियर. तो दैट इज द रूल ऑफ नेचर के कोई भी प्रोसेस हो रहा है सिस्टम का स्टेबिलाईजेशन इंक्रीज कर रहा है जो फिजिबल प्रोसेस हो रहा है. दैट्स व्हाई द एटम हम लोग नहीं देखते, वी सी एवरीथिंग इन दिस नेचर एज मॉलिक्यूल्स आफ्टर फॉर्मिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम. ओवरऑल सिस्टम का एनर्जी नीचे जा रहा है. बट एनीवेज, नाउ वी विल एनालाइज द energy of this orbital, atomic sp3 hybridized carbon orbital and 1s orbital of the hydrogen. अभी देखो, energy of sp3 hybridized carbon और energy of 1s orbital of hydrogen is defined. 1s orbital of hydrogen का energy नीचे आ रहा है, ये stable हो रहा है. क्यों? Because it is a 1s orbital and mostly the size of hydrogen is smaller than size of carbon. And इसके लिए ये atomic orbital का energy नीचे चला आ रहा है देन द sp3 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन. तो यहां पर हम लोगों का हो रहा है कि अनसिमेट्रिक कार्बन हाइड्रोजन का जो ओवरलैप हो रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, अनसिमेट्रिक एनर्जी के लिए अनसिमेट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है. नाउ यहां पर आफ्टर ओवरलैप जो हो रहा है, हम लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, जो 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, क्योंकि टोटल 8 है मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल, 4 + 4 8 है. होने के बाद यहाँ पर 8 एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, 8 बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड 8 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. तो ये जो 8 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मेरा 8 इलेक्ट्रॉन चला आएगा और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा. एंड एज वी नो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे आएगा एनर्जेटिकली एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऊपर जाएगा. तो यहाँ पर जो ऊपर और नीचे जाएगा, जनरली जब सेम लेवल पर रहता है स्प्लिटिंग का डिस्टेंस सेम रहता है. जब पहले वाला पिक्चर में देखा था एटॉमिक ऑर्बिटल का सेम लेवल है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका बीच में फॉर्म हुआ था तो क्या हुआ था, तो हुआ था कि इसका जो एनर्जी जो डिफरेंस है, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो सेम डिस्टेंस नीचे आया था और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सेम डिस्टेंस ऊपर चला गया था दोनों का लेवल से. लेकिन यहाँ पर एक का लेवल ऊपर में है और एक का लेवल नीचे है. तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो जो नीचे वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी का जो ऑर्बिटल है उससे नीचे आएगा, और जो मेरा एंटी बॉन्डिंग है ऑर्बिटल है वो जो ऊपर वाला जो एंटी बॉन्डिंग जो हाई एनर्जी वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इन मीथेन. अभी इथेन में कैसे स्ट्रक्चर होता है, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है और sp3 हाइब्रिडाइज होता है यहाँ पर. तो देखिए यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, 4 sp3 हाइब्रिडाइज हुआ. अभी देखिए यहाँ पर जो एनर्जी लेवल दो कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सेम एटॉमिक साइज, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन, वो सेम एनर्जी लेवल में चला आया. दिस इज अगेन लाइक द लास्ट स्लाइड व्हाट एवर वी शोड दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. तो ये सेम एनर्जी लेवल में चला आया. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये sp3 hybridized है, only one sp3 hybridized atomic orbital will participate in bonding between carbon and carbon. We know only carbon carbon single bond यहाँ पर हो रहा है और बाकी जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ मेरा यहाँ पर कार्बन का हो रहा है. So as it is forming the hydrogen with hydrogen, so ये जो तीनों मेरा
sp3 ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के लिए रिजर्व है। ओनली एक का sp3 ऑर्बिटल विल मेक द बॉन्ड एंड अगेन इट विल स्प्लिट इन सेम डिस्टेंस एंड नीचे वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चला आएगा जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड मेरा फॉर्म करेगा। सो दिस इज हाउ इट फॉर्म्स एंड यू सी द स्ट्रक्चर जहां पर एक sp3 जो ऑर्बिटल कार्बन का है ओवरलैप करके ये बॉन्ड फॉर्म कर दिया यहाँ पर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और बाकी जो तीनों मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है कार्बन के ऊपर, ये तीनों मिलके हाइड्रोजन के साथ मेरा CH1 वो भी sp3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया बट हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल के साथ मिलकर। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। नाउ विल गो फॉर द sp2 हाइब्रिडेशन। सो sp2 हाइब्रिडेशन में क्या क्या होता है? sp2 हाइब्रिडेशन में होता है कि 1 2s ऑर्बिटल एंड 2 2p ऑर्बिटल यहाँ पर मिक्स हो रहा है, तो जो एक p ऑर्बिटल वो क्या है, वो अनचेंज रहता है एंड दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग sp2 क्योंकि 2 p एक s है। कैसे करके हो रहा है? यहाँ पर एक s ऑर्बिटल स्फेरिकल और 2 p ऑर्बिटल मेरा डम्बल शेप हो रहा है एंड दैट इज 2py एंड 2pz, राइट, एंड दे विल मेक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तीनों ऑर्बिटल फॉर्म होगा और एक p जो ऑर्बिटल है वो अनचेंज रहता है। तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है ये एक्चुअली एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल में रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि मैं बोला था लास्ट टाइम के ये जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस टू मिनिमाइज देयर रिपल्शन, बिकॉज उस ऑर्बिटल में अभी एक एक इलेक्ट्रॉन है, पर्टिकुलरली बॉन्ड हो जाएगा तो दो दो इलेक्ट्रॉन चला आएगा तब जाके रिपल्शन होगा, तब भी रिपल्शन होगा और भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम वो लोग एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस करके रहना चाहता है, लेकिन पॉसिबल है। जैसे देखो एक घर में एक रूम में अगर 4 आदमी होता है तो 4 आदमी का बीच सभी के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस रहने के लिए सभी को इक्वल डिस्टेंस में रहना पड़ता है और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। लेकिन जब 4 आदमी से घट के 3 हो जाएगा देन दे कैन इंक्रीज देयर डिस्टेंस, दे कैन इंक्रीज द डिस्टेंस अमंग देम। तो यहाँ पर वही हो रहा है, जब 4 नहीं है बॉन्डिंग ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल 4 से रिड्यूस होके 3 हो रहा है, तब जाके दिस ऑर्बिटल्स will go now for more bonding angle, more angle, like 120 डिग्री एंगल में एक दूसरे के साथ सेपरेट हो रहा है। पहले 109 डिग्री में था, अभी बॉन्ड घट गया है या ऑर्बिटल का नंबर घट गया है, तो वो लोग देख रहे हैं कि वी कैन फर्दर रिलैक्स, फर्दर एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, तो वी कैन गो फॉर 120 डिग्री एंगल विथ ईच अदर। एंड दिस स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि प्लानर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल करके रहता है। The 3sp2 hybrid, और क्या होता है sp2 hybridase में? The 3sp2 hybridase atomic orbital on each carbon atom again can overlap with other atomic orbital। जब हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन के साथ 1s ऑर्बिटल के साथ होता है, एंड यहाँ पर भी हम लोग एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो p होता है, ये p ऑर्बिटल जो होता है, ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैप करता है। मतलब जब एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्ड कर रहा है तो वो दोनों पहला जो सिग्मा बॉन्ड कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड पहला करेगा खुद का जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देके, दे विल फर्स्ट मेक द बॉन्डिंग बिटवीन विद द हेल्प ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड उसके बीच उसका जो अनपेयर्ड p ऑर्बिटल्स रहेगा पैरेलली, वो एक दूसरे के बीच पैरेलल ओवरलैप होगा एंड दे विल मेक टू फॉर्म पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो बॉन्ड करने के बाद पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। एक पहले पिक्टोरियल व्यू देख लेते हैं कैसे करके हो रहा है। देखो जनरली sp2 हाइब्रिडाइज में मैं दिखाया है कि एक दूसरे के साथ ये लोग 120 डिग्री एंगल करके रह रहे हैं। ये ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे का 120 डिग्री और एंगल करके सभी ऑर्बिटल रह रहे हैं। तो ये प्लानर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ले रहा है। और ये जो अनपेयर्ड p है, ये जो अनचेंज p है, वो एक्चुअली परपेंडिकुलरली रह रहा है, वो प्लेन के ऊपर एक लोब रह रहे हैं, नीचे एक लोब रह रहे हैं। दैट इज हाउ sp2 और हाइब्रिडाइज्ड एटम विथ वन अनचेंज्ड p ऑर्बिटल होता है, पर्टिकुलरली कार्बन में।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का जो अनपेयर्ड sp2 है, एक एक इलेक्ट्रॉन, उनमें से sp2 में 3 sp2 ऑर्बिटल है, 2 sp2 ऑर्बिटल रिजर्व हो गया हाइड्रोजन के लिए। तो जो और एक बाकी है वो दोनों खुद के बीच सीमा बॉन्ड फॉर्म करेगा। एंड ये जो पाई है, ये पाई के दोनों पाई खुद के बीच लैटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। वही हो रहा है कि यहाँ पर सीमा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं खुद के बीच विद द हेल्प ऑफ sp2 अनपेयर्ड sp2 ऑर्बिटल। एंड जो पाई का पैरेलल ओवरलैप हुआ है उसके लिए उसका हो रहा है pi orbital हो रहा है। एंड एज these p orbitals are above and below the plane of trigonal planar and they are making the bond with the overlap, that's the reason they will make the electron cloud pi orbital का जो electron cloud होगा वो above and below में होता है। ठीक है, सो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ इथिन, अभी हम लोग देखेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ इथिन जहां पर मेरा एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथिन का ये स्ट्रक्चर हो रहा है। हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन के साथ एक कार्बन का सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, एक पाई बॉन्ड हो रहा है जो पीपी ऑर्बिटल का ओवरलैप के लिए हो रहा था, और बाकी sp2 का जो 2 ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड हो रहा है। उसका ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे। कैसे करके हो रहा है, पहले एनर्जी ड्रॉ करेंगे, एनर्जी का जो वाई एक्सिस उसका ड्रॉ करेंगे। उसमें मेरा 2s 2p 3 ऑर्बिटल है, मैं 2 ऑर्बिटल यहाँ पर दिखाया हूँ क्योंकि एक ऑर्बिटल का तो अनपेयरिंग रहेगा, वो ये 2p यहाँ पर मैं दिखाया हूँ क्योंकि वो डिफरेंट तरीके से बॉन्डिंग में जाएगा पैरेलल ओवरलैप करके। अभी देखो 2s और 2p मिक्स करके sp2 हाइब्रिडाइज हो गया जिसका एनर्जी इसका बीच में चला आया, जैसे पहले दिखाया था sp3 में s और p का एनर्जी का बीच में चला आया, p से थोड़ा घट गया है, लेकिन p में जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी एक ही लेवल में है जो p का लेवल में है, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि दैट इज द अनचेंज, एनर्जी इज आल्सो अनचेंज। सो एनर्जी जनरली 2p ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो sp2 ऑर्बिटल से हाई में रहता है। नाउ यही होगा दूसरा कार्बन के लिए, sp2 ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, 2p ऑर्बिटल ऊपर रहेगा। तो क्या होगा, अभी sp2 जब ओवरलैप करेगा, अभी देखो ये sp2 में ये वाला दो जो मेरा sp2 ऑर्बिटल है वो तो हाइड्रोजन के लिए रिजर्व है, वो तो ये हाइड्रोजन के लिए मेरा रिजर्व हो रहा है। तो एक sp2 ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, दैट इज द दिस वन। अभी ये वाला sp2 ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा, सेम एनर्जी लेवल में है तो सेम इक्वल स्प्लिटिंग हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग हो रहा है और इक्वल डिस्टेंस सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस 2p ऑर्बिटल। अभी देखो द पॉइंट इज दैट जब एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी हाई होता है देन अदर एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पर sp2 के रिस्पेक्ट में p का एनर्जी हाई हो रहा है, उसका जो ओवरलैप हो रहा है ना, ओवरलैप भी उतना अच्छा नहीं हो रहा है, एंड दैट्स द रीजन दिस स्प्लिटिंग इज नॉट दैट हाई। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है इसका एनर्जी इट्स नॉट दैट लो, दैट मींस ये जो बॉन्ड हो रहा है पाई बॉन्ड, इस बॉन्ड का एनर्जी इज नॉट दैट हाई। जस्ट कीप इन माइंड ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी हाई हो रहा है, दैट मींस बॉन्डिंग का एनर्जी लो हो रहा है। व्हाई? बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हाई एनर्जी में रहता है दैट मींस दैट सिस्टम इज नॉट स्टेबल, that system is a weak system, that means the bond itself is a weak bond। weak bond मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है। तो बॉन्ड जितना स्टेबल होता है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी रहता है, उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि बॉन्ड का एनर्जी बहुत हाई है। बट दैट विल डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ दैट पार्टिकुलर बॉन्ड, और उसके लिए उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को स्टेबल होना पड़ेगा, और स्टेबल होने के लिए उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो नीचे जाना पड़ेगा। So that is the concept. Don't confuse between the energy of molecular orbital of a particular bond and energy of that bond. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगेन स्प्लिटिंग कम हो रहा है कि ओवरलैप अच्छा नहीं हो रहा है, इसके लिए स्प्लिटिंग कम हो रहा है पाई और पाई स्टार के बीच। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द बॉन्डिंग ऑर्बिटल विल नॉट कम दैट मच बिलो, जैसे सिग्मा में हुआ था कि बहुत नीचे चला आया था, बिकॉज यहाँ पर मेरा
बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होता है, पैरेलल ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप स्ट्रांग नहीं हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो पाई पाई स्टार का ऐसे फॉर्म हो रहा है ताकि वो ये सिग्मा सिग्मा स्टार के बीच में रह रहा है। सो मेरा ऑर्डर होता है सिग्मा पाई, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन अभी चला गया पाई ऑर्बिटल में, पाई स्टार एज एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बैक एंड। तो ये में हम लोगों का जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल दो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो है यहाँ पर, एंड ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर दो है। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और होमो हो जाता है ये वाला जो हाईएस्ट एनर्जी का है, और एंटी बॉन्डिंग भी दो है, मतलब अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल भी दो है। तो लोएस्ट एनर्जी का अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल हो जाता है लूमो, लोएस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल और लूमो हो जाता है पाई स्टार, क्योंकि इसका एनर्जी लोएस्ट है among the antibonding or unoccupied orbitals. This is called homo and lumo. Okay. यहाँ पर मैं वही लिखा हूं कि sideways overlap of the p is not that effective and that's why इसका एनर्जी, ये जो एनर्जी ये बहुत, इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी हाई है लेकिन बॉन्ड एनर्जी लो है, और इसका सिग्मा का बहुत अच्छा ओवरलैप होता है, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लो है लेकिन बॉन्ड एनर्जी हाई है, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर। सीसी पाई बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी 260 है जो लो है, बट सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी 350 के लिए जो है हाई है। ये जो है बॉन्ड एनर्जी है, मतलब बॉन्ड तोड़ने का एनर्जी है, मतलब बॉन्ड कितना स्टेबल है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये एनर्जी लो है मतलब बॉन्ड कम स्टेबल है, मतलब मॉलिक्यूलर एनर्जी, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो हाई है, दैट इज इट शोइंग। एंड ये एनर्जी हाई है मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी हाई है मतलब बॉन्ड बहुत स्टेबल है। मतलब इस बॉन्ड का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लो है, वो एनर्जी डायग्राम में नीचे है। तो sp हाइब्रिडेशन में क्या होता है, यहां पर एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल मिक्स होता है, मिक्स होकर मेरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल बनाता है। तो ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके साथ 2p ऑर्बिटल अनचेंज रहता है, जैसे मेरा पहले एक p ऑर्बिटल अनचेंज था जो मेरा sp2 हाइब्रिडेशन में हुआ था। देखिए डायग्राम, देखिए पिक्चर देखिए, 2s ऑर्बिटल स्फेरिकल है और एक 2pz ऑर्बिटल लेके मेरा यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन हो रहा है। अगेन दो एटॉमिक और दो ऑर्बिटल का मिक्सचर में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है, एंड दो p ऑर्बिटल अनचेंज रह रहा है यहाँ पर। तो ये ऑर्बिटल का एंगल क्या होगा, अभी देखिए एक घर में पहले 4 आदमी था, वो खुद उन लोगों को बोला गया था कि दो के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो रहा है। तो जो 4 आदमी था वो देखा कि 109 डिग्री 28 मिनट एंगल जो है वो करके अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोगों का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। अगर उस एंगल से थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो किसी के पास हम लोग कोई दोनों के बीच डिस्टेंस घट जा रहा है। जब जाके ये एक आदमी चला गया, 3 आदमी आया, देखा गया क्या क्राउडेडनेस घट गया है, तो स्पेस ज्यादा हो गया, तो 3 आदमी बोला कि चलो थोड़ा और फैल के बैठते हैं, थोड़ा और सेपरेट हो जाते हैं, तभी जाके एंड दे सी 120 डिग्री एंगल इज द ऑप्टिमाइज्ड एंगल राइट नाउ। और जब 2 आदमी हो गया तो एकदम एक दूसरे का ऑपोजिट में चला गया, वो लोग बोल रहे हैं कि 120 डिग्री रहने का कोई जरूरत नहीं है, वी कैन स्टे 180 डिग्री मैक्सिमम। अभी देखो 2 आदमी जब रहता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे का ऑपोजिट में रहता है 180 डिग्री एंगल में। तो वही हो रहा है यहाँ पर, लीनियर स्ट्रक्चर हो रहा है, 180 डिग्री एंगल में रह रहा है। यहाँ पर भी जो 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड करेगा। पर्टिकुलरली अगर मैं एसिटिलीन का स्ट्रक्चर देखता हूं, मैं अल्काइन का स्ट्रक्चर जो हाइड्रोकार्बन के लिए, वहां पर 1s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल के साथ वहां पर मेरा ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और 2px 2py ऑर्बिटल पार्शियली पैरेलली ओवरलैप करके, लैटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। दैट वी कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस 2 कार्बन एटम now having only sp hybridized orbitals to overlap with them। एक sp hybridized orbital, तो 2 sp hybridized orbital में से एक sp hybridized orbital हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया। That means they will be having only one sp hybridized orbital left, right?
तब जाके ये दोनों के बीच सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, वो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करने के बाद। और दूसरा वाला sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहे हैं। तो व्हाट अबाउट दिस p? नाउ वी नो p ऑर्बिटल विल ऑलवेज स्टे 90 डिग्री एंगल। अभी देखो लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर पहले तो प्लानर स्ट्रक्चर था, अभी लीनियर स्ट्रक्चर है, एक लाइन है, उस लाइन अगर एक्स एक्सिस में बोला कि उसका 90 डिग्री में अगर दो स्ट्रक्चर दो साइड हो सकता है, एक जेड एक्सिस बराबर एक वाई एक्सिस बराबर। पहले तो मेरा ऑर्बिटल था एक्स और वाई, एक्स और जेड प्लेन में, सपोज ऐसा प्लेन में था, एक्स और जेड प्लेन में था, तो ओनली वाई एक्सिस एम्प्टी था sp2 में, जो मैं बोल रहा हूँ ट्राइगोनल प्लानर। तो एक्स और वाई प्लेन, एक्स और जेड प्लेन में था 3D में अगर इमेजिन किया जाएगा, तो वहां पर जाके एक ही पैरा 90 डिग्री एंगल का जगह था वाई एक्सिस में था। लेकिन अभी लीनियर है, ओनली एक्स एक्सिस बराबर जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मेरा है, तो जाके हो रहा है क्या, यहाँ पर दो जगह पी ऑर्बिटल मिल रहा है, एक है वाई एक्सिस बराबर और एक है जेड एक्सिस बराबर। इफ आई वांट टू ड्रॉ इट आई कैन शो इट। देखो मेरा जो यहाँ पर ट्राई एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मेरा वाई एक्सिस है और यहाँ पर मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा 3D स्ट्रक्चर में किया। अभी देखो मैं ये कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन अगर ड्रॉ करूंगा, ट्राइगोनल प्लानर यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ये प्लेन का तुम समझ लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला मेरा इस बराबर जेड एक्सिस है। अभी देखो इसका एक्स और जेड एक्सिस तो ऑक्युपाइड हो गया है sp2 का, ओनली वाई एक्सिस इज रिमेनिंग जो 90 डिग्री एंगल में है, एक्स वाई जेड खुद के बीच 90 डिग्री करके रहता है। यहाँ पर पकड़ लेते हैं कि ये मेरा एक्चुअली 120 डिग्री होना चाहिए, तो जेड एक्सिस एग्जैक्टली इस बराबर नहीं होगा। इसको मैं अच्छी तरह से अगर ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा बॉन्ड है, ये प्लानर स्ट्रक्चर है, ये मेरा प्लानर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बॉन्ड है, जेड एक्सिस यहाँ पर थोड़ा इस बराबर होगा जेड एक्सिस। बट द अल्टीमेट थिंग व्हाट आई वांटेड टू मीन यू इज दैट नाउ एक्स और जेड बोथ एक्सिस मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन का एटम्स वगैरह रहता है उसका प्लेन में चला है, तो p ऑर्बिटल एक ही p ऑर्बिटल जो है वो y एक्सिस में चला जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल में है। नाउ वी हैव लीनियर स्ट्रक्चर, ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर है जो 180 डिग्री एंगल में एक दूसरे का तरफ है, तब जाके ये अगर x एक्सिस बराबर रहता है तब जाके मेरा y एक्सिस भी एम्प्टी है और यहाँ पर z एक्सिस भी मेरा एम्प्टी है। तो यहाँ पर तो मेरा बॉन्ड हो गया, तो एक p ऑर्बिटल y एक्सिस बराबर रहेगा और एक p ऑर्बिटल मेरा z एक्सिस बराबर चला आएगा। तो ऐसे करके मेरा बॉन्डिंग फॉर्म होगा और यहाँ पर वही हो रहा है कि एक p ऑर्बिटल मेरा z एक्सिस बराबर है और एक p ऑर्बिटल मेरा y एक्सिस बराबर है। ठीक है, तो इसका पैरेलल ओवरलैप होगा, ओवरलैप होने के बाद 2 पाई ऑर्बिटल होगा। तो लीनियर स्ट्रक्चर का एक पाई ऑर्बिटल ऐसे साइडवाइज रहेगा और एक पाई ऑर्बिटल ऐसे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन रहेगा। तो एक प्लेन मेरा वाई एक्सिस का प्लेन है, उसका साइडवाइज दो पाई ऑर्बिटल पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेगा या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, ये ऑरेंज कलर का। और एक जो पाई ऑर्बिटल जो पाई वाई पी वाई अगर यहाँ पर एक्स और वाई दिखाया जाता है, बट you can consider x, you can consider the orange one और ये कोई भी you can interchange this one x y z कोई भी चीज में दिखा सकते हो। बट द कॉन्सेप्ट इज दैट वंस वन एक्सिस बराबर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग कर ले रहा है तो दूसरा जो p ऑर्बिटल्स है वो पैरेलली ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन में एक साइडवाइज पाई ऑर्बिटल बाउंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है और एक अबव और बिलो द प्लेन कर रहा है, और sp2 में अबव और बिलो द प्लेन किया था। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये स्ट्रक्चर्स जब हम लोग एल्कीन एल्काइन का रिएक्टिविटी करेंगे तब कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कहाँ से बॉन्डिंग होगा, क्यों वहां से आता है, क्यों उस जगह से बॉन्डिंग हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन एडवांस लेवल जब स्टीरियो केमिस्ट्री करेंगे तब इंपॉर्टेंट होगा। तो दिस आर द स्ट्रक्चर्स वी नीड टू नो। सो
सो अभी हम लोग देख लिए हैं कि sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम कर सकते हो तुम, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। ओनली 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेगा, एक तो हाइड्रोजन के साथ रहेगा और एक कार्बन के साथ, वो जस्ट खुद के बीच बॉन्ड करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम स्प्रिंग देगा। और यहाँ पर 2p ऑर्बिटल रहेगा और 2p ऑर्बिटल जो सेम लेवल में रहेगा वो अगेन खुद के बीच ओवरलैप करके दो पाई पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा देगा, वहां पर मेरा दो दो चार इलेक्ट्रॉन चला आएगा। सेम लाइक sp2, यहाँ पर जस्ट एक sp ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, वहां पर भी एक sp2 का ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा हुआ था, लेकिन बाकी दो ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ हुआ था। यहाँ पर एक sp का ऑर्बिटल का हाइड्रोजन के साथ होगा, sp का कार्बन के साथ होगा, और बाकी जो रिमेनिंग p ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल अभी दो रहेगा, वहां पर एक की जगह यहाँ पर दो दिखाएगा। सेम स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। यू कैन ट्राई एट योर होम दैट स्ट्रक्चर drawing and you can comment in the video if you can't draw it, or you can post the picture of the video of the molecular orbital to the comment। तो एक चीज है कि हम लोग कैसे एक स्ट्रक्चर देख के ही कौन सा ट्रिक है जो हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा sp3 sp2 sp है। डिटेल्स तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर देखने के बाद जो हम लोग का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको देख के हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे करके बोलेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर sp है, sp2 है, sp3 है। देखो ये बहुत इजी का चीज है। अगर हम लोग कार्बन जो एटम है उसका जो बॉन्डिंग है वो कितना एटम के साथ सिंगल बॉन्ड कर रहा है और टोटल कितने एटम के साथ बॉन्ड करके रह रहे हैं, टोटल सिंगल और डबल बॉन्ड मिला के कितने एटम के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, सिमिलर और सेम एटम हो सकते हैं, तो उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो sp3 में तो मेरा 4 ऑर्बिटल रहता है बॉन्डिंग के लिए, तो 4 एटम के साथ बॉन्ड करेगा, तो 4 एटम के साथ बॉन्ड अगर करेगा तो sp3 हो जाएगा। sp2 में 3 ऑर्बिटल रहता है बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि p जो है वो तो खुद के बीच कर रहा है, तो पाई ऑर्बिटल हो रहा है, तो यहाँ पर 3 एटम के साथ अगर बॉन्ड करेगा तो sp2 हो जाएगा, और एक पाई बॉन्ड करेगा तो sp2 हो जाएगा वहां पर। और sp में 2 एटम के साथ अगर बॉन्ड करेगा लीनियर स्ट्रक्चर जैसे मैं दिखाया था तो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल के साथ 2 पाई और पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ये कार्बन देखो 4 एटम के साथ बॉन्ड किया है, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। ये कार्बन जो है 2 कार्बन के साथ बॉन्ड किया है, सॉरी हाँ 2 कार्बन के साथ बॉन्ड किया है, एक कार्बन नंबर 1 एक कार्बन नंबर 3, और इसका कोई बॉन्डिंग नहीं है। कार्बन नंबर 3 के साथ ही ये 3 बॉन्ड किया है, एक सिग्मा 2 पाई मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, वहां से भी तुम समझ सकते हो, या फिर 2 एटम के साथ बॉन्ड किया है दैट मींस sp हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हो जाएगा sp। c3 also is sp because it bond with 2 carbon 2 and carbon 4 and there is 2 pi bonding, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज। C4 again it forms bond with 4 hydrogen 2 hydrogen and 2 carbon 4 atom, it is sp3। what about C5, ये 3 एटम हुआ है बॉन्डिंग, एक ये हाइड्रोजन एक ये कार्बन कार्बन 4 और ये कार्बन 6, ऊपर से एक पाई है दैट मींस इट इज sp2। और ये कार्बन के साथ जब एक कार्बन बॉन्ड कर रहा है एक पाई बॉन्ड रहता है, इसका भी 3 एटम है, ये 2 हाइड्रोजन है और एक C5 है, ऊपर से एक पाई बॉन्डिंग है, तो दैट इज आल्सो sp2। तो ऐसे करके हम लोग स्ट्रक्चर देख के हाइब्रिडाइजेशन समझ सकते हैं। नाउ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है हाइब्रिडाइजेशन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशनशिप रहता है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेनी टाइम वी नीड टू नो फॉर मैकेनिज्म और प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल जब हम लोग करेंगे डिसाइड करेंगे, पर्टिकुलरली एसिडिटी बेसिसिटी में इंडक्टिव इफेक्ट में, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज इट दैट the s orbital is the nearest in the nucleus to the nucleus। तो क्या होता है हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, जो न्यूक्लियस के नजदीक होता है दैट इज मोर स्टेबल, एंड दैट्स द रीजन द ग्रेटर द s orbital contribution of the hybridized orbital atomic orbitals and bonding, greater the electronegativity, क्योंकि s orbital न्यूक्लियस के नजदीक है तो उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, एंड दैट इज ओनली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होता है, साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि जो आउटर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल के ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो रहा है, एंड दैट्स द रीजन आउटर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दैट एटम जा रहा है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस से आउटर ऑर्बिटल नजदीक है,
एटम छोटा है और उसका जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उस तरफ साइड से, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब दो एटम के बीच जो बॉन्डिंग पेयर को खुद की तरफ खींचता है। कौन बॉन्डिंग पेयर को खुद की तरफ खींचेगा? जिसका आउटर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहेगा, क्योंकि बॉन्डिंग जो हो रहा है वो तो आउटर ऑर्बिटल का ओवरलैप से ही हो रहा है। बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो तो आउटर ऑर्बिटल का ओवरलैप से ही हो रहा है, वो तो आउटर ऑर्बिटल में ही रहता है। तो जो न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस आउटर ऑर्बिटल को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। दैट मीन्स जो एटम का साइज कम होगा, क्योंकि साइज कम होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर ऑर्बिटल में ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है, क्योंकि एस कैरेक्टर, एस ऑर्बिटल हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के नजदीक रहता है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो sp3 में एस कैरेक्टर सबसे कम होता है, sp में सबसे ज्यादा होता है, sp में 50% होता है, एक sp 50%, sp2 में 33%, क्योंकि टोटल 3 ऑर्बिटल है, उनमें से एक ऑर्बिटल sp s है, तो 1/3 इंटू 100 होगा मेरा 33%। और sp2 में रहता है मेरा, सॉरी sp3 में रहता है मेरा 25%, क्योंकि टोटल 4 रहता है और 1/4 इंटू 100 इज sp2 का एस करेक्टर 25% यहाँ पर रहता है। तो इसके लिए जिसका एस करेक्टर हाई है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है। sp2 hybridized carbon is more electronegative than sp2 hybridized carbon. Again, sp2 hybridized carbon is more electronegative than sp3 hybridized carbon. At the same time, not only electronegativity, the bond length also we can, and bond energy also we can decide with the hybridization. कैसे? जैसे sp hybridized orbital contains more s character and hence it is closer to the nucleus, and hence the and forms shorter and stronger bond. देखो अगेन एटम का साइज अगर छोटा हो जाता है, मतलब अगर आउटर ऑर्बिटल जो हाइब्रिडेशन किया है बॉन्डिंग करने के लिए वो न्यूक्लियस का साइज नजदीक चला जाता है, तो ओवरऑल बॉन्डिंग का साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस छोटा कम घट जाता है। तो इसके लिए जब ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तब जाके बॉन्डिंग का लेंथ घट जाता है। जैसे कोई एटम अगर एस ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करेगा तो उसका लेंथ घट जाएगा, उसका टोटल बॉन्ड का लेंथ घट जाता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल नजदीक में है। तो सिमिलरली अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा रहता है तो उसका बॉन्ड का लेंथ घट जाता है, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, लेंथ अगर घट जाता है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाता है, क्योंकि वी नो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, राइट। एंड दूसरी तरह से भी यू कैन टेल दैट, अगर देखो अगर मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम अगर इफ यू इमेजिन, इफ यू सी, जे मेरा यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एनर्जी दे रहा हूँ। कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल का मेरा एस कैरेक्टर, सपोज यहाँ पर एस कैरेक्टर 33% है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल का मेरा एस कैरेक्टर 50% है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल नजदीक रहेगा। नाउ if you consider two different structures, suppose two different molecular orbital, एक में थोड़ा ऊपर की तरफ है जो 33% है, एक में थोड़ा एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग कर रहा है थोड़ा नीचे की तरफ है, तो इसका अगर सेम अगर पकड़ लेते हैं तो इसका स्प्लिटिंग के लिए जो नीचे आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये जो एमओ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सेम अमाउंट ऊपर चला जाएगा ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एबीओ, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सॉरी ये बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो रहा है मेरा ए बी एमओ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट एट द सेम टाइम ये जिस लेवल में है ये थोड़ा नीचे लेवल में है, इसका जब ओवरलैप होगा इसका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा ये और भी थोड़ा नीचे चलेगा आएगा, मतलब इसका जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस से नीचे है, दैट मीन्स दैट विल बी मोर स्टेबलाइज एट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट विल फॉर्म। जो मेरा 50% वाला एटॉमिक ऑर्बिटल इस कैरेक्टर वाला एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्म हुआ है और 33.3% वाला इस कैरेक्टर वाला एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्म हुआ है, ये दोनों का जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, इसका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका एनर्जी इससे थोड़ा ज्यादा होगा
और इसका एनर्जी इससे थोड़ा कम होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जहां पर 50% एस करेक्टर है वहां पर जो बॉन्डिंग हो रहा है उस बॉन्डिंग का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो रहा है। ऐसे भी करके देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हाउ इजीली यू कैन अंडरस्टैंड और थिंक अबाउट दिस। अच्छा, तो अभी हम लोग देखेंगे सीसी सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का कुछ कैरेक्टर्स जो हम लोगों का जरूरी है ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए। एक तो हम लोग देख चुके हैं कि जब लेंथ सिंगल बॉन्ड का sp3 जैसे sp3 का एस कैरेक्टर कम है सबसे तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। जब sp2 बॉन्ड करेगा तब बॉन्ड लेंथ उससे कम हो जाएगा और sp में कम हो जाएगा। ये रीजन लास्ट वाला स्लाइड में दिया हुआ, एस कैरेक्टर जब बढ़ेगा तब बॉन्ड लेंथ घट जाता है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाता है। इन केस ऑफ CsP3 इथेन क्या होता है, फ्री रोटेशन ऑफ सीसी बॉन्ड इज टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर, सिंगल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, टू एक्सट्रीम प्लॉसिबल जो स्ट्रक्चर होता है ये सिंगल बॉन्ड में, एक को स्टैगर्ड बोला जाता है, एक एक्लिप्स। ये कैसे होता है, ये देखो ये एक शॉहर्स प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर है जो हम लोग ओनली स्टीरियोकेमिस्ट्री में नहीं, कोई भी सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड में जब मैकेनिज्म करते हैं तब ऐसे क्या कहता है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके ये उनका क्वेश्चन आया है ब्रोमिनेशन का। अगर हम मैकेनिज्म इसके आधार पर ड्रॉ करेंगे तो पूरा डायरेक्टली हम लोगों का न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही चला आएगा। वी डोंट हैव टू गेट any Fisher projections done here, we no need to convert here and we no need to spend time on this। तो कैसे करके हो रहा है कि शॉर्ट्स प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है, दो स्ट्रक्चर होता है, एक है इक्लिप्स स्ट्रक्चर्स, एक है स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। इक्लिप्स मतलब क्या हो रहा है, जो मेरा वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में जैसे होता है कि एक के ऊपर एक चला आता है, दैट इज द इक्लिप्स स्ट्रक्चर। जब मैं सामने से अगर देखूंगा तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के ऊपर चला आ रहा है। और दूसरा होता है कि जब एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन का एंटी रहता है, एकदम पूरा 180 डिग्री डिफरेंस में रहता है, ये हाइड्रोजन का एंटी रह रहा है, ये हाइड्रोजन का एंटी रह रहा है। तो ये है मेरा स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन एंड दैट इज माय इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। ऐसे ही करके इन फ्यूचर में हम लोग जब मैकेनिज्म करेंगे, जब रिएक्शन करेंगे तो मॉलिक्यूल को sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल के ऐसे स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेंगे इजीली एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हिच काइंड ऑफ प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म्ड। But we need to know before that these are the how the structures are generally in CC bond, single bond में होता है। एक है इक्लिप्स, एक है स्टैगर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रोटेशन फ्री होता है पर्टिकुलरली हाइड्रोजन में। लेकिन अगर हम लोग एक ब्रोमीन, दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके ब्रोमीन कर देते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है, तो वो जो रोटेशन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अभी जो हाइड्रोजन तो छोटा साइज है ना, तो एक साथ जब घूम रहा है इक्लिप्स फॉर्म क्रॉस करने के टाइम में उसका अटक नहीं रहा है, दे विल नॉट स्टक विथ ईच अदर। But at the same time, when both are bromine here, if the size is bigger here, they will collide and they don't want to cross each other। यहाँ पर रिपल्शन आएगा। तो इसके लिए हम लोगों का क्या होता है कि वो रोटेशन हिंडर हो जाता है। एंड इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग लो टेम्परेचर में लेके ये दो स्ट्रक्चर को अलग से देख सकते हैं। जनरली नॉर्मल एल्केन में ये दोनों स्ट्रक्चर को अलग से नहीं देख सकते लो टेम्परेचर लेने के बाद भी, क्यों, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, रोटेशन बहुत फास्ट हो रहा है, रोटेशनल बैरियर ही नहीं है। रोटेशनल बैरियर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये साइज अगर बड़ा हो जाता है तो रोटेशनल बैरियर बढ़ जाता है, ये साइज अगर छोटा होता है तो रोटेशनल बैरियर घट जाता है एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट दिस टू फॉर्म। अगर कोई आदमी का मूड बहुत फास्ट स्विंग करता है, कैन वी जज देम, वी कांट जज देम इजीली, वी डोंट इवन नो व्हाट दे आर थिंकिंग एट दैट टाइम। बट एट द सेम टाइम अगर कोई आदमी बहुत स्टेबल रहता है दो डिफरेंट फॉर्म में, उसका इंटर कन्वर्शन एक मूड से हर एक मूड का इंटर कन्वर्शन ज्यादा नहीं होता है और ज्यादा इजीली नहीं होता है, देन वी कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हेन दे आर हैप्पी, व्हेन दे आर एंग्री, व्हेन दे आर सॉरो, दुखी है, और इस टाइप का हम लोग सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं। बट व्हेन इंटर कन्वर्शन इज हाई then it is very difficult to separate two different forms। but when interconversion is hindered because of the bigger size, then it is very easy to separate। particularly interconversion bond rotation घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लो टेम्परेचर में कभी कभी लेके जाते हैं, तब जाके लो टेम्परेचर में होता है तो एक्सटर्नल एनर्जी कम होता है, तब जाके वो बॉन्ड मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। जैसे हम लोग ठंडे में
थोड़ा शेकी रहता है, राइट? हम वी डोंट वांट टू मूव मच इन टू कोल्ड मींस वी वांट टू जस्ट कीप इट लाइक दैट एंड वी वांट टू स्टे लाइक दैट। यहाँ पर मॉलिक्यूल भी अगर बहुत हम लोग लो टेम्परेचर में ले जाते हैं देन दे डोंट वांट टू मूव, दे वांट टू फ्रीज। बट अगेन इफ द एल्केन्स, फॉर एल्केन्स हियर, जैसे अगर रोटेशन बेरियर बहुत कम है, मतलब बहुत इजीली मूव कर सकते हैं जो मूवमेंट, तब जाके क्या हो रहा है, तब जाके मेरा मूवमेंट इजी हो रहा है, तब लो टेम्परेचर में भी मैं मूवमेंट स्टॉप नहीं कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पर जब थोड़ा बेरियर आ रहा है, बेरियर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तब एटलीस्ट लो टेम्परेचर में लेके जाके हम लोग ये दो स्ट्रक्चर को अलग देख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। CsP2sp2 बॉन्ड डबल बॉन्ड इन इथिन 1.33 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड का जो मेरा लेंथ कम है उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके, एंड दैट इज लेसर देन CsP2 जो सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब आएगा बॉन्ड लेंथ मेरा घट जाएगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। CsP2 डबल बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है देन नॉर्मल, ये हम लोग सब जानते हैं। दिस इज जस्ट characteristic of the CC single bond, CC double bond, and CC triple bond. We just revising these things, and we are right now rationalizing the things with help of our molecular orbital theory or bonding or hybridization, what we learned till now here in this video. So देखिए CsP2 हम लोग जानते हैं कि हमें रोटेशनल एनर्जी, रोटेशन जो होता है CC सिंगल बॉन्ड का रोटेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन सीसी डबल बॉन्ड का जो रोटेशन है उतना अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों? देखिए अभी देखिए सीसी सिंगल बॉन्ड जो होता है बॉन्डिंग है, एक ही बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड हेड ऑन हुआ है। तो हेड ऑन जब हुआ है, जब वो रोटेट कर रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक साथ रोटेट कर रहा है। जब डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्डिंग हेड ऑन होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का होता है, एक बॉन्डिंग पैरेलल होता है जिसके बीच 90 डिग्री रहता है। मतलब यहाँ पर एक बॉन्डिंग हो रहा है मेरा हेड ऑन, बट एक बॉन्डिंग मेरा पैरेलल हो रहा है। अभी देखो रोटेशन के लिए हेड ऑन बॉन्डिंग का, हेड ऑन ओवरलैप का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जब रोटेशन हो रहा है इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये घूम रहा है अच्छी तरह से। बट व्हेन वी हैव अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो जो पी ऑर्बिटल का ओवरलैप जब होता है, वो जब रोटेशन हो रहा है वो 90 डिग्री से हट जा रहा है, वो पैरेललनेस से हट जा रहा है, एक दूसरे के साथ कुछ एंगल कर रहा है, एंड दैट ओवरलैप हैम्पर्ड एंड दैट बॉन्ड ब्रेक्स। और बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए, एंड विच एनर्जी वी नीड? दो वी नो पाई बॉन्ड इज लोअर एनर्जी देन सिग्मा बॉन्ड, बट स्टिल वी नीड सम एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड, दैट इज द बॉन्ड एनर्जी। ओके, तो इसके लिए डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता है, क्योंकि जो पाई ओवरलैप, जो पाई बॉन्ड है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ब्रेक कर जाता है, स्टेबिलिटी ब्रेक कर जाता है, एंड इसके लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी का जरूरत है, तो है जो सिंगल बॉन्ड के लिए कभी जरूरत नहीं होता है। एंड दैट इज द रीजन सिंगल बॉन्ड हैव very good rotation while CC double bond doesn't have that good rotation, and CC triple bond we can't even imagine because वहां पर तो दो पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। So this is the reason that we have defined rotational energy. Okay, rotation energy of CC sigma bond in alkane lead to reduction in pi overlapping for sp2 whatever I have told, and that is the restrictness that is causing the restrictness. The pi electrons are labile, ready to react and distributed in two lobes above and below the molecules. That already I have told you. In case of sp2 they are only y axis बराबर pi orbital रहता है, एंड जो pi मेरा इलेक्ट्रॉन्स रहता है आफ्टर बॉन्ड फॉर्म के बाद वो अबव और बिलो द प्लेन में रहते हैं, और CCsp हाइब्रिडाइज के लिए वो अबव और बिलो द प्लेन एज वेल एज साइडवाइज भी रहते हैं। अभी CC ट्रिपल बॉन्ड का क्या कैरेक्टर है? उसका एनर्जी और भी है क्योंकि तीन बॉन्ड है, वेरी हाई एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाटएवर बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। अभी देखो ये सिंगल बॉन्ड जो है 1.42 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड कैरेक्टर के लिए यहाँ पर 1.22 एंगस्ट्रॉम, साइज छोटा हो रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड का एनर्जी ज्यादा होता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लेन। अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए मोर एंगल रहेगा क्योंकि यहाँ पर दो एटम के साथ बॉन्डिंग हो रहा है, 110 डिग्री, सॉरी यहाँ पर एंगल रहेगा, कम एंगल रहेगा सॉरी, क्योंकि sp3 में मेरा ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल है, यहाँ पर बॉन्ड दो एटम के साथ हो रहा है, लेकिन मेरा ऑर्बिटल में तो बाकी दो ऑर्बिटल में तो लोन पेयर रह गया है, तो मेरा एक घर में यहाँ पर 4 आदमी है, मतलब 4 ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग के बाद दो दो करके इलेक्ट्रॉन रहेगा, और नॉर्मली तो
यहाँ पर ऑक्सीजन में जब sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो दो sp3 हाइब्रिडाइज में लोन पेयर रह जाता है, क्योंकि वो स्टेबल ऑर्बिटल में रहना चाहता है, वो ऑलरेडी पेयर्ड है, लोन पेयर्ड, पेयर्ड और इलेक्ट्रॉन्स है, लोन है लेकिन पेयर्ड है। एट द सेम टाइम व्हेन sp2 हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइज होगा तब जाके क्या होगा, तब जाके मेरा ऑक्सीजन का दो ऑर्बिटल तो होगा लोन पेयर का, उसके बाद और एक बॉन्डिंग करेगा कार्बन के साथ, नंबर घट गया मेरा टोटल ये ऑर्बिटल का, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का, तो एंगल बढ़ गया, जैसे sp2 में होता है 120 डिग्री एंगल। तो ये देखो ये सब कुछ एंगल और लेंथ अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड we'll also see the molecular orbital structure of this particular group. In C double bond O group, both C and O atoms are sp2 hybridized and the bonds look like below formaldehyde। कैसे करके देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, हम लोग जानते हैं कि कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक p ऑर्बिटल खाली रहता है, एक p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अनचेंज रहता है, वो परपेंडिकुलर है। ऑक्सीजन का ही सेम चेंज है, वहां पर sp2 प्लानर ट्राइगोनल है, एक p ऑर्बिटल अबव एंड बिलो द प्लेन में है। यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन का जो दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड नहीं है, वो हाइड्रोजन के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, और ऑक्सीजन के लिए वो लोन पेयर ऑलरेडी रिजर्व कर चुका है यहाँ पर, क्योंकि लोन पेयर जनरली यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो थिंग है ये वी आर रिजर्विंग दिस थिंग्स फॉर हाइड्रोजन, मतलब ये बॉन्ड पहले जनरली तो नहीं है, पहले तो जनरली कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, उसके बाद हाइड्रोजन हम लोग बैठाएंगे, लेकिन हाँ जनरली CH3 रेडिकल और जब रिएक्शन होता है तब भी हाइड्रोजन ऑलरेडी रह सकता है, बट द पॉइंट इज दैट CH2 का कार्बन का जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3 है वो दो ऑर्बिटल हाइड्रोजन के लिए रिजर्व्ड है, और ऑक्सीजन के में यहाँ पर लोन पेयर वाई, ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि ठीक है दो ऑर्बिटल हाइड्रोजन के लिए एक कार्बन के लिए, बट द क्वेश्चन इज व्हाई द लोन पेयर्स आर नॉट इन पाई ऑर्बिटल्स एंड व्हाई दे आर इन hybridized orbital, and this is again the concept of energy, you should able to answer this thing। देखो यहाँ पर पाई ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, that will participate in bonding, but लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड करके बैठा हुआ है। नाउ हु आर ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड बाय, नहीं बॉन्ड किया, दो इलेक्ट्रॉन है खुद के बीच ऑलरेडी एक स्टेबल है, दोज हु आर देयर विथ टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग अगर मोर स्टेबलाइज्ड रूम पे रखेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, या एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज्ड रूम पे रखेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली देखो इलेक्ट्रॉन्स जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज्ड रूम पे रहेगा, ये स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल में रहेगा, सिस्टम का स्टेबिलिटी टोटल ज्यादा होगा, क्योंकि सिस्टम का स्टेबिलिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में रह रहा है, और ऑर्बिट जितना लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में रह रहा है तो उतना इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लो हो रहा है और उतना स्टेबल होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी ऑर्बिटल में रखना ज्यादा फायदेमंद है देन वन इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए मेरा लोन पेयर हर वक्त sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रह रहा है जो मोर स्टेबलाइज्ड है। सी द मॉलिक्यूलर, गो बैक एंड चेक द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के p ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल से sp2 ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, but with respect to p, now you understand everything about these things। now you see these two sp2 orbital will make the bond sigma bond, and this pp orbital pp pi bond will form parallel overlap and pi electron will be above and below the plane। so this is how we can draw the MO structure, the structure of the molecules for C double bond O group। अभी C double bond O का molecular orbital देखते हैं, ये थोड़ा complicated लग रहा है but that will be very easy to understand to you if you can understand the last few molecular orbitals। देखो very easy things। अभी देखो यहाँ पर फिर से मेरा 2s2 2p3 कार्बन का है, सेम चीज एनर्जी ड्रॉ किया हूँ, 2s यहाँ पर जहां पर है इसका 2s नीचे है, क्यों, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका 2p इसका 2p से नीचे है, बट अगेन द पॉइंट इज दैट वी केप 2p फॉर हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज sp2 हो रहा है एंड 1 2p फॉर पैरेलल बॉन्डिंग। कार्बन कार्बन का याद करो, बट ये कार्बन ऑक्सीजन का है जो हेटेरोएटॉमिक है, जैसे यू रेड अबाउट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे ड्रॉ किया था हम लोग बॉन्डिंग चैप्टर में, वही हो रहा है सीसी डबल बॉन्ड से, ये थोड़ा डिसिमेट्रिक हो रहा है बट चीजें सेम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिड में दो sp2 मेरा यहाँ पर कार्बन का दो sp2 हाइड्रोजन के लिए रिजर्व है, ऑक्सीजन का दो sp2 मेरा लोन पेयर के लिए रिजर्व है। व्हाई यू नो ऑल दिस थिंग्स, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, बिकॉज द स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दो इलेक्ट्रॉन को मोर स्टेबलाइज में रहना चाहिए,
यहाँ पर फिर से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, या ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर ऑर्बिटल्स, इसलिए सभी लोन पेयर्स जो ऑलरेडी पेयर कर चुका है उसको हम लोग नीचे रख देंगे sp2 में। So that's why only one unpaired electron left in sp2 orbital and one unpaired electron left in 2p orbital. Now bonding कर रहा है, अभी देखो बॉन्डिंग हो रहा है, पहले sp2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसके नीचे चला आएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसके ऊपर चलेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग वैसे भी हो रहा है। नाउ अनदर वन थिंग, इफ यू कैन सी, you see the middle of this bond orbitals also little bit shifted towards this oxygen, right? Why? That is how we can explain the electronegativity, because you know oxygen is more electronegative and bond pair of electron is shifting towards the oxygen. So जब दो डिफरेंट एटम के बीच हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं, ओनली वाई एक्सिस में भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू ओनली कंसीडर दिस थिंग्स, वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और दिस थिंग्स, we don't bother about this thing, but still when we are drawing little bit we will shift it towards oxygen, because उस टाइम में बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली मिडिल में नहीं रहेगा, थोड़ा ऑक्सीजन के साइड में रहेगा। Anyways, our main motto is to understand the molecular orbital and we understand it very easily right now. So this 2 इलेक्ट्रॉन चला आएगा sp2 में, सॉरी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ऑक्सीजन का 2 जो 2p है वो चला आएगा यहाँ पर pi bonding molecular orbital में. So this is my HOMO and this is pi star is my LUMO. So this is how कार्बन मोनोऑक्साइड का मेरा molecular orbital diagram हो गया। एनर्जी वगैरह सब कुछ you can just rationalize, you can understand with the help of the concept whatever I told you or taught you. 2p orbital का q sp2 के ऊपर है and all these things I told you. And again 2p का जब overlap हो रहा है, splitting इस बार देखो थोड़ा ज्यादा हुआ है पहले से, because एक ऑर्बिटल थोड़ा स्टेबल है ऑक्सीजन का 2p, but anyhow both will again stay within the splitting of the sigma and sigma star. So sigma pi star sigma star ऐसे होगा sequence, and this is how we can draw the molecular orbital diagram. But nitrogen के लिए भी same we can draw, but I'm not going to the details, but we can just say that when nitrogen having 3 sigma bonds, again it is sp3 hybridized, जहाँ पर लोन पेयर एक ऑर्बिटल में रहेगा, बाकी 3 ऑर्बिटल देके बॉन्ड होगा. When nitrogen we have forms 2 sigma bonds and 1 pi bond, it will be sp2 hybridized, and when nitrogen will be having 1 sigma bonds and 2 pi bonds, it is sp hybridized. And the characters, if you want to know, Cn single bond we know 1.47 angstrom and 305 किलोजूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी. सी डबल बॉन्ड एंड उसका छोटा होता है 1.29 एंगस्ट्रॉम 616 किलोजूल पर मोल, एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड उसका और भी छोटा होता है बॉन्ड लेंथ, एंड बॉन्ड एनर्जी हो जाता है 893 किलोजूल पर मोल. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आई थिंक स्टिल नाउ you got all the information and your understanding about these bondings with the help of molecular orbital diagram and hybridization. It is very clear. Now we'll end up our topic with a very important subtopic that is called conjugation, and we'll understand this. We need to understand this because we'll see many conjugate system का जो reactivity है वो normal system का reactivity से different है, and we'll understand this right now here today with the help of molecular orbital diagram again. How? देखो जब दो डबल बॉन्ड एक दूसरे से एक सिंगल बॉन्ड से, कार्बन का 2 डबल बॉन्ड एक दूसरे से एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड रहता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन वो भी नहीं है जब डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट रहता है, और कॉन्जुगेशन वो भी नहीं है जब कोई सेपरेशन नहीं रहता है. दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से इज दैट ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में देखो ये डबल बॉन्ड के बीच 2 डबल बॉन्ड चला आया है, सो दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. बट ये स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड के बीच एक डबल बॉन्ड चला है. ऑन द सेम साइड इफ यू सी एलिन काइंड ऑफ सिस्टम मींस इफ यू हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन है, अभी ये जो डबल बॉन्ड है इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, मतलब ये फिर से एक डबल बॉन्ड चला है, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है. दिस इज नॉट आल्सो अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बट दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, राइट. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जो प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं, व्हाट इज दैट
Conjugated system is in case of compounds with more than one double bonds, it is found that compounds in which double bonds are conjugated are slightly more stable than the isolated. मतलब इस सिस्टम में, ये वाला सिस्टम में ये एल्किन स्टेबल है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज हाई, मतलब इसको हाइड्रोजनेशन करके रिड्यूस करने के लिए हाई एनर्जी का जरूरत है. अगेन द बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज हाई यहाँ पर जो डबल बॉन्ड्स वगैरह है. दैट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बेसिस में हम लोग कॉन्सेप्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लो है, इसलिए पाई बॉन्ड का एनर्जी हाई है, हाइड्रोजनेशन का एनर्जी हाई है, और इसका मेरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज लो, मतलब बहुत इजीली रिएक्ट कर रहा है, अनस्टेबल हो रहा है. मतलब इसका जो ये जो दो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड का, उसका एनर्जी ऊपर है. दैट्स व्हाई दिस पाई बॉन्ड का एनर्जी नीचे है, कम है. सो दिस इज हाउ वी कैन रैशनलाइज इट. बट व्हाई इट इज हैपनिंग विल सी इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जब डिटेल्स में स्टडी करेंगे ये कॉन्जुगेट सिस्टम के नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में. सो इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन क्या हो रहा है, अभी देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पहले देखेंगे ऑर्बिटल्स का इसका यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है. सो इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन लैटेरल ओवरलैप कैन टेक्स प्लेस बिटवीन ऑल 4 p ऑर्बिटल्स, बिकॉज देखो ये जो 4 p ऑर्बिटल है, 4 कार्बन है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, ये आजू बाजू में सभी p ऑर्बिटल्स पैरेलल है. दैट मींस वी हैव राइट नाउ बॉन्ड बिटवीन दिस 2 and these 2, right? 4 and 5 and 2 and 3. Now we are considering conjugated butadiene, so we will not consider this part. We have only 2 से 5 तक, 2 से 5 तक मेरा मॉलिक्यूल है. We will just forget about this part. Okay, so anyways the concept is that now ये जो p ऑर्बिटल है ये दोनों के बीच बॉन्ड हो रहा है, इसलिए 2 और 3 4 और 5 के बीच बॉन्ड हो रहा है. बट एट द सेम टाइम वी कैन हैव अ पार्शियल पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैप ऑफ दिस p ऑर्बिटल आल्सो, राइट? सो इसके लिए ये जो इन दैट केस देखो ओनली मेरा पॉसिबिलिटीज ओवरलैप यहाँ पर हो रहा है, इसका ओवरलैप मेरा लेकिन नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर डिफरेंस होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर डिफरेंस होता है, लेकिन क्यों हो रहा है वही हम लोग जानेंगे. द पॉइंट इज दैट नाउ बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स वी हैव 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो जनरली 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्यों हो रहा है, देखो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो रहा है. अभी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, मतलब इस पाई बॉन्ड के लिए वी हैव पाई पाई स्टार एंड इसके लिए वी हैव पाई पाई स्टार. नाउ ये जो पाई जो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसके बीच में फिर से ओवरलैप हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस गेटिंग कॉन्जुगेशन इज कमिंग क्लोज. तो दोनों मिलके फिर से 2 पाई मिलके फिर से 4 ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है, एंड व्हिच विल सी हाउ इट इज फॉर्मिंग. सो और एक चीज देखो पहले जाने के बाद, इफ वी हैव 2 पाई ऑर्बिटल्स एंड 2 पाई स्टार ऑर्बिटल, या डेफिनेटली यहाँ पर 2 पाई ऑर्बिटल है, 2 पाई स्टार ऑर्बिटल है, इसके लिए एक पाई स्टार ऑर्बिटल जब 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड हो रहा है, और 4 और 5 के बीच जब डबल बॉन्ड हो रहा है तो एक पाई और एक पाई स्टार ऑर्बिटल होता है. तो टोटल 2 और पाई और 2 पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, और टोटल 4 ऑर्बिटल्स खुद के बीच इंटरेक्शन करके 4 अगेन न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रहा है. और इस बार जो इंटरेक्शन कर रहा है 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही इंटरेक्ट कर रहा है. तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस बार रिएक्ट करके नया न्यू 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, जो इस सिस्टम में नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सिस्टम में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. देयर इज 1 एक्स्ट्रा कार्बन और 2 बॉन्ड्स आर देयर, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. तो अभी इस सिस्टम में जो इंटरेक्ट हो रहा है ब्यूटाडाइन में कैसे हो रहा है, अभी देखो ये जो 2 p पाई ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम लोग कैसे करके देख सकते हैं. एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग में है, मतलब इन फेज है, उसके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है वो एक कॉम्बाइन हो रहा है इन फेज कॉम्बाइन में. जब सभी एक जगह पे मेरा लाइन इन फेज कॉम्बाइन, हम लोग जानते हैं p ऑर्बिटल का कैसे होता है कि p मेरा प्लस माइनस p यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है. अगर उलट जाता है उल्टा जाता है, अगर p प्लस माइनस का p माइनस प्लस होता है तो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है. दिस वी हैव रेड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन आवर बॉन्डिंग चैप्टर. यहाँ पर प्लस माइनस के इंस्टेड ऑफ प्लस माइनस वी आर शोइंग विद द रेड बॉल एंड व्हाइट बॉल. ओके, तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड हुआ है इसका एक बॉन्डिंग जो हो रहा है फेज में हो रहा है,
और इसका भी एक है जो जहां पर पीपी इन फेज में है, इसके बीच अगर इंटरेक्शन होता है, ये दोनों टाइप का इंटरेक्शन होता है। एक है कॉम्बाइन हो रहा है जब इन फेज में हो रहा है, जब सभी रेड बॉल नीचे रह रहे हैं, मतलब प्लस लोब्स और माइनस लोब एक ही साइड में रह रहा है, और एक में आउट ऑफ फेज हो रहा है, मतलब ये दोनों तो इन फेज में है जब बॉन्ड कर चुका है, लेकिन उसका एक इंटरेक्शन इन फेज में हो रहा है और एक इंटरेक्शन आउट ऑफ फेज में हो रहा है, जब एटलीस्ट ये दोनों के बीच इंटरेक्शन बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन ये दोनों के बीच इंटरेक्शन एंटी बॉन्डिंग हो रहा है, फिर से ये दोनों के बीच बॉन्डिंग हो रहा है। तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो रहा है, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो रहा है। और क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और मेरा पाई स्टार से दो पाई स्टार से दो डिफरेंट होगा। पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, देखो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म क्या हुआ है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है एक पी के साथ एक पी जब इन फेज किया है, प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस, और पाई स्टार हुआ है जब मेरा एक प्लस माइनस के साथ एक माइनस और प्लस हुआ है, मतलब उल्टा हो गया है। मतलब ये जो एक साइड का है वो हम लोग देखेंगे अभी, प्लस को अगर रेड कर दिया है तो ऐसे और ऐसे है, तो ऐसे ऐसे करके जो पाई स्टार हुआ है ये दोनों का, एल्किन का जो पाई स्टार हुआ है, दो पाई स्टार हुआ है, वो दो पाई स्टार फिर से इंटरेक्ट कर सकता है, एक इनफेस कर सकता है, एक आउटफेस कर सकता है। तो मेरा क्या है, पहला वाला पॉइंट, दो एल्किन का दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हम लोग ऑलरेडी एल्किन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो एल्किन का ईच एल्किन का कितना ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक पाई ऑर्बिटल है सिग्मा ऑर्बिटल छोड़ के, एल्किन का जो पाई ओवरलैप के लिए, पीपी पैरेलल ओवरलैप के लिए एक पाई ऑर्बिटल है और एक पाई स्टार ऑर्बिटल है। तो एक एल्किन का एक पाई ऑर्बिटल एक पाई स्टार ऑर्बिटल है, और दो एल्किन का दो पाई ऑर्बिटल दो पाई स्टार ऑर्बिटल है। तो पाई ऑर्बिटल जो होता है वो इन फेज पी ऑर्बिटल का पैरेलल ओवरलैप के लिए प्लस के साथ प्लस लोब माइनस के साथ माइनस लोब, और पाई स्टार ऑर्बिटल होता है आउट ऑफ फेज पैरेलल ओवरलैप के लिए जो प्लस के साथ माइनस लोब माइनस के साथ प्लस लोब हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहले पाई ऑर्बिटल जो होता है, इसका एक पाई ऑर्बिटल और इसका एक पाई ऑर्बिटल, उसका इंटरेक्शन देख रहा है। उसका दो टाइप का अगेन इंटरेक्शन होता है, एक इन फेज इंटरेक्शन होता है जब सभी प्लस लोब एक साइड में है, और एक आउट फेज इंटरेक्शन होता है जब एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का दो प्लस लोब और दूसरा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो प्लस लोब है उसके ऑपोजिट में होता है। तो ये दोनों लेके दो ऑर्बिटल हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्जुगेट सिस्टम का। और हो रहा है जो मेरा पाई स्टार ऑर्बिटल है, एल्किन का पाई स्टार ऑर्बिटल मतलब ये वाला जहां पर पी ऑर्बिटल ही आउट ऑफ फेज है, तो ये दो आउट ऑफ फेज ऑर्बिटल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दोनों का फिर से जब कंबाइन होगा ओवरलैप होगा कॉन्जुगेट सिस्टम में, ये दोनों तरफ हो सकता है। एक हो सकता है जब एटलीस्ट एक में सेम फेज में आता है, मतलब एक में एटलीस्ट मतलब जो कंबाइन कर रहा है वो वाला दो पी ऑर्बिटल का मेरा प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस हो रहा है। लेकिन और एक होता है आउट ऑफ फेज, जब ये दोनों तो आउट ऑफ फेज ही है, पाई स्टार है जैसे, तो इसका दूसरे का जो है वो रिवर्स हो जा रहा है, तो उसका जो माइनस है और प्लस है, इसका माइनस और प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये आउट ऑफ फेज कंबाइन कर रहा है। तो वी कैन रिप्रेजेंट ऑल फोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स like this stacked up in order of their energy in a molecular orbital energy diagram। कैसे करके करते हैं, देखो ये है कॉन्जुगेट सिस्टम का मेरा मॉलिक्यूलर डायग्राम। जब देखो लास्ट वाला सब मॉलिक्यूलर डायग्राम में हम लोग क्या सीखे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं, राइट। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कॉन्जुगेट सिस्टम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लेके नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं, जिसके बेसिस में मेरा कॉन्जुगेट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक आता है। देखते हैं हम लोग कैसे कैसे होता है। तो मेरा यही मैं बोल रहा था कि एक पाई बॉन्ड का एक पाई ऑर्बिटल एक पाई स्टार ऑर्बिटल होता है। तो मैं अगर कॉन्जुगेट सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ब्यूटाडाइन का, ये 1 2 3 4, तो ये जो पाई ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड है, इसका एक पाई ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक पाई स्टार ऑर्बिटल होता है। ये जो है इसका एक पाई ऑर्बिटल पाई स्टार होता है। ये पाई ऑर्बिटल इन फेज में हर वक्त होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका भी प्लस प्लस माइनस माइनस। इसका दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक इन फेज होता है जब सब एक ही साइड में होता है, इसका हो जाता है एक आउट ऑफ फेज में, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन होता है, तो दोनों का सेम साइड में होता है खुद के अंदर, बट इस बीच का आउट ऑफ फेज हो रहा है। पाई स्टार जो होता है वो ऑलरेडी आउट ऑफ फेज में पी ऑर्बिटल है, जो दोनों का पाई स्टार है वो पी ऑर्बिटल प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ प्लस हो रहा है। लेकिन ये दोनों फिर से जब कंबाइन कर रहे हैं, ये भी आउट ऑफ फेज और इन फेज कर रहा है। पहले इन फेज होता है जब ये रेड के साथ रेड दोनों पैरेलल रहता है, और एक आउट ऑफ फेज हो जाता है जब
ये रिवर्स हो जाता है। तो जाके देखा जाता है यहाँ पर मेरा कोई नोड नहीं हो रहा है, मतलब रिवर्स इंटरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर एक नोड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर दो नोड फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर मेरा तीन नोड फॉर्म हो रहा है। इसका एनर्जी सबसे हाई हो रहा है। तो जितना एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन मेरा हो रहा है, जितना रिवर्स वेव का इंटरेक्शन हो रहा है, मेरा उतना एनर्जी हाई हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस। अगेन एनर्जी वाई एक्सिस में दोनों का सीसी डबल बॉन्ड कोई चेंज नहीं है, पाई का एनर्जी सेम है, दोनों का ही सीसी डबल बॉन्ड से पाई हो रहा है, इसलिए पाई और पाई स्टार का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल में है। एंड व्हेन दे विल मेक कॉम्बिनेशन, अगेन दे विल स्प्लिट इन सेम डिस्टेंस एंड दे विल फॉर्म अगेन दैट फोर न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी देखो इसको हम शाई देके इंडिकेट कर रहा है, द नंबर ऑफ नोड्स नीचे से ऊपर जितना ज्यादा है उतना बढ़ रहा है। Notice that p orbitals making the pi system are not all shown as the same size. Their coefficients are different. ये देखो एक चीज है, ये क्वांटम केमिकल से आ रहा है, ये p ऑर्बिटल का जो साइज है बीच में ये बड़ा है, साइड में छोटा है, ऐसा करके दिखाया जाता है। ये p ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, साइड में बीच में छोटा है, ये p ऑर्बिटल का साइज में बड़ा है, छोटा है। ये कैसे आता है, ये क्यों होता है? ये एक्चुअली देखो ये टोटल डायग्राम, ये तो परसेप्शन है, ये आया है क्वांटम केमिकल कैलकुलेशन से, क्वांटम मैकेनिक्स का कैलकुलेशन से, जो हम लोगों का स्कोप के अंदर नहीं है। वी डोंट नीड टू गो इन डिटेल्स, वी हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन, वी हैव टू जस्ट कीप आवर माइंड, कीप द इंफॉर्मेशन, कीप द आउटकम इन आवर माइंड। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि ये जो दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है, ये पिक्चर के जरिए ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो, ये जो ऑर्बिटल प्रिपेयर हो रहा है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक मिडिल में सबसे ज्यादा होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक साइड में सबसे ज्यादा है। अगेन ये वाला का कैरेक्टरिस्टिक साइड में ज्यादा होगा, ये वाला का कैरेक्टरिस्टिक मिडिल में सबसे ज्यादा होगा। दैट इज अ कोएफिशिएंट शोइंग। तब इसका मतलब इतना जितना अच्छा कैरेक्टर है मिडिल में होगा ज्यादा, जितना बुरा कैरेक्टर है मिडिल में ज्यादा होगा। मतलब इसका अगर बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा है वो मिडिल में ज्यादा होगा, और इसका अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा है वो भी मिडिल में ज्यादा होगा। तो जितना जितना है सब कुछ जाके मिडिल में ही होगा। इसका अगर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका साइड में ज्यादा होगा, मिडिल में नहीं है। तो पकड़ लेते हैं इसका अगर बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा है, बॉन्डिंग कोएफिशिएंट ज्यादा है, तो वो मिडिल में बॉन्डिंग कोएफिशिएंट ज्यादा करेगा, और इसका अगर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा है तो साइड में ज्यादा होगा, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर मिडिल में ज्यादा नहीं होगा। तो इसका जो प्रॉपर्टीज है अच्छा या बुरा सब कुछ साइड में ही ज्यादा दिखाई देगा। तो वही मैं लिखा हूं कि वी नीड टू जस्ट नो अबाउट द कोएफिशिएंट, कहां पर ज्यादा कहां पर होता है, दैट वी नीड टू एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ दिस कॉन्जुगेट सिस्टम नेक्स्ट स्लाइड में, बट वी डोंट नीड टू नो अबाउट द कैलकुलेशंस। ईच ऑर्बिटल्स होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई सिस्टम गो psi1 to psi2। तो दो दो जो चार इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो पाई पाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, राइट। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला गया। तो ये दोनों के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करके ही मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा और दिखा जाएगा कैसे करके होगा। तो इन psi1 द लोएस्ट एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड आउट ओवर ऑल 4 कार्बन एटम्स एंड अबव एंड बिलो द प्लेन इन द कॉन्टिन्यूअस। अबव और बिलो द प्लेन तो होगा पाई ऑर्बिटल का, वो तो मैं जानता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड मैं दिखा चुका हूँ। ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड, जो sigma bonding anti-bonding orbital, that we are not concerning right now, we are only concerning with the pi orbitals। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड हो रहा है ये अबव बॉन्डिंग का अबव एंड बिलो ही हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि कैसे करके होता है। तो देखो psi1 में जो होता है, मेरा सभी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करता है, तो सभी बॉन्डिंग इंटरेक्शन में 3 बॉन्डिंग इंटरेक्शन टोटल हो रहा है, एंड उसका कैरेक्टर कहां पर ज्यादा हो रहा है, मिडिल में ज्यादा होता है, क्योंकि कोएफिशिएंट मिडिल में ज्यादा है। तो देयर इज 3 बॉन्डिंग between all 4 C atoms and 3 net bonding interaction। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन मिडिल में आ रहा है, ठीक है, एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर मिडिल में या साइड में आ रहा है, वो बहुत बड़ा नहीं है। ये 2 बॉन्डिंग के साथ एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन आ रहा है, लेकिन कोएफिशिएंट इसका साइड में ज्यादा है। तो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो मिडिल में आ रहा है उसका कोएफिशिएंट एग्जैक्टली इज नॉट इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो यहाँ पर मिडिल में आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है मिडिल में वो बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो मिडिल में हो रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड इसका समान नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को नालीफाई नहीं कर रहा है।
तो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन थोड़ा कम हो रहा है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, एंड that's the reason I have written that Shy2 has bonding interaction between carbon 1 and 2 and 3 and 4 and both में हो रहा है, but an anti bonding interaction between 2 and 3 in बीच में, that means total net bonding interaction is 1, but at the same time what I importantly told you, मैं Shy3 Shy4 में बाद में जा रहा हूँ, in both the occupied pi orbitals there are electrons between 1 and 2 and between 3 and 4, but the anti bonding interaction between 2 and 3, मतलब Shy1 का जो इन Shy2 का जो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज पार्शियली कैंसल्स आउट द बॉन्डिंग ऑफ द बॉन्डिंग इंटरेक्शन इन Shy1। मतलब Shy1 और Shy2 का दोनों में मेरा दो दो चार इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों का कैरेक्टरिस्टिक देना पड़ेगा, ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक वेव का डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। तो Shy1 में मैं क्या देख रहा हूँ, Shy1 में देख रहा हूँ मेरा तीनों बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब चार एटम के बीच ही इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन एटम के बीच ही इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट है, एंड दैट इज मेजोरिटी इन मिडिल। तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन मेजर मिडिल में हाई हो रहा है, क्योंकि Shy1 का कोएफिशिएंट मिडिल में हाई होता है। Shy2 में क्या हो रहा है, Shy2 में दो साइड में बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है दो साइड में ज्यादा है, लेकिन मिडिल में एंटी बॉन्डिंग हो रहा है। अभी देखो मिडिल में एंटी बॉन्डिंग मतलब यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट चला आता है मैथमेटिकली, और -1 +1 0 होता है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली -1 नहीं हो रहा है, कोएफिशिएंट कम हो रहा है। मतलब यहाँ पर अगर बॉन्डिंग इंटरेक्शन मिडिल में +1 हो रहा है, यहाँ पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन मिडिल में हो रहा है -1 से नीचे, मतलब -4 -5 -6 -7 समथिंग। तो टोटल करने से मेरा बीच में ओवरऑल कैरेक्टर जब करेंगे हम लोग Shy1 और Shy2 का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कंबाइन करने के बाद बीच में मेरा थोड़ा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रह रहा है, एंड दैट्स द रीजन वी हैव अ पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल पाई क्लाउड इन बिटवीन 2 and 3। सो इस जगह पे मेरा थोड़ा पाई इलेक्ट्रॉन चला आ रहा है, एंड दैट इज गिविंग आवर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देयर। सो राइट नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कैसे करके यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का जो पार्शियल कैरेक्टर चला आता है 2 और 3 के बीच। Now the concept is that what about Shy3 and Shy4? Anyhow Shy3 and Shy4 is not our concern much, because यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन Shy3 में ओनली एक हो रहा है बीच में, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन 2 हो रहा है। अगेन साइड का जो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, साइड का कोएफिशिएंट ज्यादा है, तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि साइड का कोएफिशिएंट ज्यादा हो रहा है और वहां पर एंटी बॉन्डिंग ही हो रहा है, और यहाँ पर सब जगह पे एंटी बॉन्डिंग हो रहा है, ऊपर से मिडिल का कोएफिशिएंट ज्यादा है, तो कैरेक्टर मिडिल में ज्यादा है, बट दैट इज नॉट इन आवर कंसर्न। ऑलरेडी फ्रॉम दिस टू ऑर्बिटल we can come to know right now why the middle bond, the 2 and 3 carbon atom having partial positive, partial pi electron. This explains why all the bonds in butadiene are not same, and we have a double bond character in between there. तो कैसे करके डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्सटेंड टू इट्स प्रेफरेंस फॉर प्लानरिटी। तो इसके लिए अगर दोनों साइड में डबल बॉन्ड है, बीच में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो टोटल मॉलिक्यूल मेरा प्लानर हो रहा है। ये जो C2C3 का ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड मेरा शॉर्टर हो रहा है 1.54 एंगस्ट्रॉम हो रहा है। नॉर्मल जो ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर नॉर्मल सिंगल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड 0.4 या 0.5 कोएफिशिएंट का आ रहा है, मैं ऑलरेडी बोल दिया। तो ये ओरिजिनल जो सिंगल बॉन्ड है उसके थोड़ा कम हो रहा है साइड, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर से इसका जो साइज बॉन्ड का साइज, बॉन्ड का लेंथ थोड़ा घट जाता है, इसलिए यहाँ पर 1.45 एंगस्ट्रॉम है एंड यहाँ पर 1.54 एंगस्ट्रॉम है। तो देखो यही मैं दिखा रहा हूँ कि कॉन्जुगेट सिस्टम में ये बॉन्ड का कैरेक्टर लेंथ 1.45 एंगस्ट्रॉम है। जैसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पाई का ओवरलैप हो रहा है, इसलिए इसका रोटेशन एनर्जी भी थोड़ा बढ़ गया है। जनरली सिंगल बॉन्ड का रोटेशन एनर्जी 3 किलो जूल होता है, लेकिन इसका बढ़ गया क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा आ गया है। और नॉर्मल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से तो जो नॉर्मल डबल बॉन्ड होता है उसका तो रोटेशन एनर्जी हाई होता ही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी कि पी ऑर्बिटल का 90 डिग्री वो जो ओवरलैप है उसका ब्रेक हो जा रहा है। अभी लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, दिस इज द लास्ट स्लाइड, द कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टिविटी बिटवीन कॉन्जुगेट एंड सेपरेटेड एल्कीन। अगर मेरा सेपरेटेड एल्कीन इथीन रहेगा और ब्यूटाडाइन रहेगा, दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है क्यों चेंज हो जाता है, रिएक्टिविटी क्यों चेंज हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो सेपरेटेड एल्कीन आर लेस स्टेबल देन योर कॉन्जुगेटेड एल्कीन।
व्हाई इट इज सो विल कम टू नो। और क्या होता है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन का रिएक्टिविटी सेपरेटेड एल्कीन से ज्यादा होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये एक अद्भुत कैरेक्टर है, ये एक स्ट्रेंज कैरेक्टर है। इसका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डबल बॉन्ड का ब्रेक करने का कैरेक्टर, जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मोस्टली हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होमोलाइटिक क्लीवेज देके पकड़ते हैं। बट जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का टाइम आता है, जब जाके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होकर रिएक्ट करने का टाइम होता है, तब जाके फिर से डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, देखो अभी अगर फिर से तुम वापस जाओगे वो पुराना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंड यू सी द सेम मिडिल पार्ट एंड वन ऑफ द साइड पार्ट आई हैव केप्ट इट हियर। जस्ट इफ यू गो देयर यू सी एक पाई नॉर्मल एल्कीन का, और ये वाला डायग्राम मैं वहां पर सेपरेटली लेके कंपेयर कर रहा हूं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, शाई 1 शाई 2 के बीच में बाएं तरफ पाई रह रहा है, वहां पर दाएं तरफ रखा हो, मतलब क्योंकि जस्ट वी कंपेयर ओनली वन एल्कीन एंड वन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और शाई 3 शाई 4 के बीच में पाई स्टार रह रहा है। ये मेरे एनर्जी का सीक्वेंस है, जस्ट इसको ही मैं वहां पर लेके कंपेयर कर रहा हूं बिटवीन वन कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड वन सेपरेटेड एल्कीन सिस्टम। देखो ये सेपरेटेड एल्कीन इथीन सिस्टम, इसका पाई का जो एनर्जी है शाई 1 शाई 2 के बीच में है, और पाई स्टार का जो एनर्जी है ये शाई 3 शाई 4 के बीच में है। यहाँ पर मेरा एरो देके मैं एनर्जी बोल सकता हूँ कि नीचे से ऊपर एनर्जी जा रहा है। तो पॉइंट्स क्या है, the overall energy of two bonding butadiene molecular orbital is lower than that of two molecular orbitals of ethene, and that means the conjugated butadiene is more thermodynamically stable. So this is the reason कि heat of hydrogenation मेरा butadiene में ज्यादा हो रहा है, butadiene thermodynamically more stable हो रहा है। क्या ये जो पाई का जो एनर्जी है, इसका जो एनर्जी और शाई 1 शाई 2 का जो सम्मिलित एनर्जी है, जो उसका जो टोटल एनर्जी है, इससे नीचे आ रहा है, क्योंकि शाई 1 ऑलरेडी इज वेरी लोअर देन पाई, एंड शाई 2 और शाइन का जब हम लोग करेंगे एवरेज आउट करेंगे तो इसका यहाँ पर कहां पर आएगा टोटल एनर्जी 2 2 4 मिला के, ठीक है। चार्ज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका एनर्जी मल्टीप्लाई बाई 2, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एनर्जी मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल एनर्जी आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चला जाएगा सिस्टम का, इसका 2 प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करके यहाँ पर इस रीजन में एनर्जी आएगा, और इसका तो मल्टीप्लाई प्लस 2 करके जो आएगा वो इस रीजन में आ रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा इस रीजन में आ रहा है, तो इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इससे नीचे चला आ रहा है ओवरऑल, तो इसके लिए इसका थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज्यादा हो रहा है। देखो एनर्जी कॉन्सेप्ट से कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से इजीली वी कैन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर फ्यूचर टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, होमो और लूमो में क्या हो रहा है, देखो ये मेरा होमो का क्या है, यहाँ पर पाई होमो है, बट यहाँ पर 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो इसके लिए शाई 2 मेरा होमो है। तो मेरा होमो का एनर्जी जितना ज्यादा होता है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने का चांस ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। तो न्यूक्लियोफाइल का हर वक्त जो होमो है, एक्चुअली रिएक्शन जब न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल का होता है, तो होमो का न्यूक्लियोफाइल लूमो का न्यूक्लियोफाइल का होमो इलेक्ट्रोफाइल का लूमो के साथ इंटरेक्ट करता है। दैट मीन्स क्या होता है कि जब कोई दो रिएजेंट में, दो ऑर्गेनिक रिएक्शन का ग्रुप में, सपोज एक एल्किन के साथ कीटोन ग्रुप का सी डबल बॉन्ड ग्रुप का रिएक्शन हो रहा है, तो वो जो पाई जो होमो है, ये जो पाई स्टार पाई का जो होमो है, उसका इलेक्ट्रॉन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ का लूमे। दैट इज हाउ अ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट। अभी इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जाना चाहता है कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी में जाना चाहता है, राइट। तो इसके लिए होमो का एनर्जी जितना हाई होता है उसका रिएक्टिविटी उतना अच्छा होता है न्यूक्लियोफाइल का, और लूमो का एनर्जी जितना लो होता है तो उसका एक्सेप्टेंस उतना ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी लोअर एनर्जी में जाता रहता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का लूमो जितना लोअर होता है, रिएक्टिविटी उतना हाई होता है। तो दैट इज द रीजन दैट, देखो यहाँ पर दोनों का, मेरा जो इथिन और ब्यूटाडाइन का मैं देखता हूँ, तो होमो किसका एनर्जी हाई है, मेरा ब्यूटाडाइन का होमो हाई है, तो ब्यूटाडाइन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। एट द सेम टाइम लूमो किसका लो है, लूमो है मेरा शाई 3, और यहाँ पर पाई स्टार इथिन का, तो लूमो है ब्यूटाडाइन का अगेन लो, इसलिए इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी लो हो रहा है। एंड दैट इज द पिक्यूलियर नेचर कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नीचे आने से थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी लो हो रहा है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लो हो रहा है, मॉलिक्यूल थर्मोडायनामिकली स्टेबल हो रहा है। लेकिन जब पोलर रिएक्शन का बात आ रहा है, जब इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का बात हो रहा है, तब होमो भी हाई एनर्जी है, न्यूक्लियर इसके लिए, इसलिए रिएक्शन भी स्ट्रांग हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रांग है, और लूमो भी लो एनर्जी में आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी हाई हो रहा है इसका
So conjugation system is having this peculiar character. Another one thing, the last thing you need to know is that conjugation system make colors. वुडवर्ड फिशर्स लॉ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं वुडवर्ड फिशर्स लॉ में कि कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होता है कलर होता है। ये की होता है, अभी कलर की होता है कोई मॉलिक्यूल में लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो कलर होता है। लाइट कौन सा रीजन में? कलरफुल रीजन में, मतलब यूवी रीजन में नहीं, उससे ज्यादा मेरा लैम्डा रीजन जो होता है, मतलब यूवी रीजन से ज्यादा लैम्डा जो लाइट है वो कलरफुल विजिबल रीजन में जब होता है तब जाके मेरा मॉलिक्यूल्स कलरफुल होता है। तो वो मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके, लाइट एब्जॉर्ब करके करता क्या है? करता है एक्चुअली फॉर टेम्पोररीली वो मॉलिक्यूल का होमो से एक इलेक्ट्रॉन जाम करके लूमो में चला जाता है। दैट्स व्हाट, बट इट्स अगेन कम बैक बिकॉज लूमो में एनर्जी लाना स्टेबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग इट एक्साइटेड स्टेट, नॉट द स्टेबल स्टेट। ग्राउंड स्टेट स्टेबल स्टेट में अब और फिर से चला आता है होमो में। नाउ द पॉइंट इज दैट कि मेरा होमो और लूमो का जो एनर्जी गैप है उसके हिसाब से मेरा एनर्जी, मेरा लाइट एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, राइट। सो होमो और लूमो का जो एनर्जी गैप है उसके हिसाब से मेरा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी गैप अगर छोटा होता है तो छोटा मेरा जो लैम्डा का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एनर्जी गैप छोटा यहाँ पर एनर्जी गैप छोटा जितना होता है, सॉरी बड़ा लैम्डा का, क्योंकि एनर्जी E इक्वल्स टू H न्यू और H C बाई लैम्डा वी नो। तो एनर्जी जितना छोटा होगा लैम्डा उतना बड़ा होगा। तो इसके लिए जब ये जो एनर्जी छोटा हो रहा है, देखो लैम्डा बड़ा हो रहा है, तो नॉर्मल रीजन में जो होमो और लूमो का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है यूवी रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन कॉन्जुगेट जितना हो रहा है, कॉन्जुगेशन जितना आ रहा है, उसका होमो और लूमो का एनर्जी घट रहा है, एंड दैट्स द रीजन it will take the it will accept the light with higher frequency and sorry lower frequency and higher wavelength। और wavelength जितना हाई होगा तो उतना मेरा यूवी रीजन से कलरफुल रीजन में जाएगा और उतना कलर दिखाएगा। इसलिए एक मॉलिक्यूल्स में जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है उसका कलर उतना इंटेंस होता जाता है। एंड दैट्स व्हाट वी कैलकुलेट डू इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वी जस्ट चेक with the UV visible spectroscopy that what is the color, and we can check also the homo-lumo energy gap। क्योंकि जितना मेरा लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट, जितना लैम्डा ज्यादा होगा मैं बोल सकता हूँ लैम्डा इस मॉलिक्यूल से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है। तो दैट इज हाउ वुडवर्ड फिशर्स लॉ केम। एंड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी lessons again we'll teach you that how Woodward Fisher's law in UV spectroscopy it works, but I think in joint interest advanced also it is not there, it is mostly for IIT JAM or higher level, that get net level, but at the same time we need to keep right that for any coloration of the compound or when we see the color it is because of the conjugation। and why it is because of the conjugation? Because conjugation के लिए मेरा होमोलुमो का एनर्जी गैप घट रहा है, and that is actually the energy what is absorbing or light it is absorbing, and as lower energy light when it will absorb it, the energy of the light low means higher lambda, higher wavelength, and that means it is the more colorful light, it is going from UV to colorful region। So this is what all about the bonding in organic compounds and also about the conjugations। and I think this is very important part you have to remember to understand the characteristic of organic molecules and reaction mechanism। and lastly the next chapters is coming with aromaticity, one very important topic in IIT joint advanced NEET mains and NEET level। and this time you will see how this conjugation concept will help you to understand the aromaticity। so I hope you like the video, stay healthy, stay blessed, and we'll see each other on our next video on aromaticity। Bye.